Hi everybody. हेलो Hi. Assalamu alaikum Lubna. कैसी हो? ठीक है ठीक Thank you. आपने time निकाला. Thank you Mehreen. I'm meeting you, seeing you for the first time. But we've spoken a lot on WhatsApp. I can't hear Yeah, you. I Muted. Yeah, now I can. had to move a few things around, but it worked out, so that was good. Yeah, thank you so much. Thank you so much. I understand, the time difference and everything. We're just waiting for a few people to join in, and then we shall begin. Somehow, punctuality is not a national trait. There are few who are very punctual, and there are few who don't like to be punctual. So it's always a penalty for being punctual that we have to pay, and I've been paying it all my life. I mean, I'm the first one to arrive at any meeting. Having learned my lesson 100 times, 1,000 times, I still because I feel it's my ethical responsibility to be there. But Thank you, Sarah, for coming online. She must be jet lagged. Supposed to be there, and around 7 more people are supposed to be there. So Sarah is there. Yeah. Sarah Manika, she must be jet lagged from her. Yeah, I am jet lag. Yeah, I arrived last night and then I woke up super early and then I started falling asleep again. I was like, no, let's put on some red lipstick. That always wakes. Yeah. That always wakes me up. Red lipstick and Red Bull. I don't Right? know. Yes. So I decided to go with the red lipstick. So I'm awake right now, but I Okay. might not be able to stay for the whole 2 hours. But I'll definitely be here for the first hour. I mean, it's flexible. I have actually been messaging people, "Ki please join kar le." Let me just send it to a few more people, because somehow they think that 7 means 8. I don't know why. Hello, Umer Alvi. Oh, hi Umer. Umer is here. How are you? उमेर आप म्यूट हैं हाँ उमेर आवाज नहीं अभी भी नहीं आ रही. We can see your lip movement, so I know that you asked अब आ रही है लेकिन नहीं आ रही. और अपना सिस्टम भी देख लें, उसके स्पीकर या माइक तो नहीं म्यूट हुआ हुआ. Alicia, please check. हम सबको अब ये ट्रबल शूटिंग करनी आ गई है. मुझे तो फिलहाल ट्रबल क्रिएटिंग ही आई हुई है अभी तक. मैं तो उसको 2 दफा क्लिक करके देखा, ओ हाँ ऐसे होता है. Because we're not allowed to use Zoom for our work, so I use. I mean, I've just started to get the hang of it. I'm still not very good at it. अब आवाज आ रही होगी मेरी अभी. जी अब आ रही है. So I think Shazia Hassan has just joined us. Shazia Hassan is from Dawn, the newspaper. A lot of people may know her. She is a great reporter. She's into a lot of different kind of things, and so yeah, let's just begin. I mean, others can join in because some of you have to leave early. I don't want to punish those who are punctual, and I don't want to punish myself, though I have to be here till the meeting ends, whether 2 log honge, 1 log honge, whatever. Acha ji, so I would like to formally welcome everybody. Assalamu alaikum, good morning, good night, good evening, जहाँ पे जो time चल रहा है. आदाब. इस पे हम बात बहुत कर रहे थे. I mean, Hopscotch was created as a space where we could discuss the entertainment media. You know how women have been represented, portrayed in dramas, in soaps, I mean, soaps and dramas and series and serials. And why is it that the public just keeps on absorbing it, taking it and not responding, and at times liking it? I mean,
We have the example of Mere Paas Tum Ho. That was a record-breaking success, though it was one of the most sexist, misogynistic plays that one could ever have seen. वो सिनेमा हॉल में भी चला और रिकॉर्ड तोड़ चला. So ये सारी चीजें थी जिसने अक्स को कंपेल किया कि हम एक ग्रुप बनाएं हॉपस्कॉच के नाम से. एंड लेट मी जस्ट क्लैरिफाई कि ये कोई फंडेड चीज नहीं है. अक्स के पास कोई चीज फंडेड होती नहीं है. अक्स बेचारा जो है वो गिरता पड़ता चलता रहता है. And as I always tell people that for the past 24 years since I founded UX, I'm a non-salaried director. So I have not taken a penny as a salary from UX. मेरी अपनी जो consultancy छोटी मोटी होती है इससे मेरा गुजारा चल जाता है. So this hopscotch is also not a funded thing. It's something that I needed to create to be able to discuss various plays. हमने डंक पे बात करनी है. अभी हमने उससे पहले बहुत सारे हमने सिला पे बात की थी. I think Bigul is here and we had an entire team of Sila because डर से जाती है Sila was something very different. हालांकि उसमें भी मुझे Bigul से ही पता चला कि उन्होंने compromises उन्हें करने पड़े थे. But even with the compromises, I think it was a wonderful play. And I'm still very thankful to the entire team जो ना सिर्फ हमारे बेचारे छोटे से अक्स के ऑफिस में आई गर्मी में मई की, बल्कि बहुत अच्छा डिस्कशन भी हुआ. And we sort of tried to unpack a lot of myths that we have around sexual harassment, around domestic violence, stuff like that. Then we also had a dialogue for change on Motorcycle Girl because I found that movie to be very refreshing, something very unusual. And we had a very great, and Umair is there. Umair was one of the people who actually put me through the director and the cast. तो हम ये करते रहते हैं. हमारी दीवानगी, हमारा सरफरापन जो है वो सारा कुछ इस पे चलता रहता है. जब डंक शुरू हुआ था, I don't know how many of you have actually followed it since the beginning. I have. मैंने I think शुरू की 1-2 किस्तें नहीं देखी थी, फिर वो मैंने YouTube पे फॉलो करना शुरू किया. I had problems since the beginning because I could sense कि ये कहाँ जा रहा है. और मैंने कुछ सवालात या टॉकिंग पॉइंट्स भेजे हुए थे कि जी आप को क्या लगा कि and anybody can take the lead because I know Khabar has to leave early, Asha has to leave early. So those who have to leave early may answer, may just contribute. Answer भी नहीं, सिर्फ contribute कर ले किसी भी एक talking point पे. For example, कि what was or what were the lies that you could detect in the series. Anybody can come up with your own perception on the play. Umair, should we start with you since you liked the play so much? अच्छा, लाइट की बात नहीं है, प्रॉब्लम्स तो मुझे भी थी, ठीक है. और वो बीच में प्रॉब्लम्स मैंने फिर लिखा भी था क्योंकि मैं जो रिव्यू करता था बेसिकली करता हूँ उसमें 3 सेक्शंस होते हैं, द प्लॉट, द गुड, द बैड, ठीक है. तो मेरा उसमें बैड हमेशा ही रहा है और बीच में जाके ड्रामा इतना ड्रैग हो गया था कि मैंने उसको एक दफ़ा तो मतलब मैं ऑल्टरनेट वीक्स पे रिव्यू करता था, मैंने रिव्यू ही करना छोड़ दिया था. और फिर मैंने 8 एपिसोड्स का एक साथ किया रिव्यू क्योंकि वो मेरी भी एक तरह से बस हो गई थी. इशू जो था, देखिए इशू बहुत उन्होंने वैलिड उठाया हुआ था उनके लिहाज से शुरू में, जो जिस तरह से उन्होंने कैरी किया था. बाद में जाके उन्होंने उसमें 3, 4, 5, 6 चीज़ें डाल के मसाला डाल के उसको 32 एपिसोड 31 एपिसोड्स तक किया. अगर ये 10 एपिसोड्स में निकल जाती चीज़ और इसको ड्रैग ना किया जाता तो ये और भी अच्छा हो सकता था, जैसे कि आपकी होती हैं चीज़ें. लेकिन क्योंकि उनको चैनल्स को ये प्रॉब्लम है कि 30 से 32 किस्तें करनी हैं, 30 से 32 हफ्ते 6 महीने निकालने हैं उनको, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी डालते हैं. जैसे वो आप जो आखिरी एपिसोड के अंदर किडनैपिंग वाला सीन हुआ, वो तो मेरी भी समझ में नहीं आया कि ये क्यों हुआ, क्या ज़रूरत थी किडनैपिंग करने की. वो छोटा सा कोई और मजाक प्रैंक कर लेते जिसमें अम्मा अब्बा खड़े हुए शीशे के उस तरफ और यहाँ पे ये खड़े, अगर इनको दिखाना था. अच्छा, जहाँ तक बात है टॉपिक की, तो देखिए
मैंने ये भी लिखा भी यही था कि टॉपिक उनके पास एक उससे पहले एक ड्रामा था जिसमें दिखाया था उन्होंने कि जो खवातीन है वो उनके साथ ज्यादती होती है, जो कि होती है, और वो ड्रामा पूरा उस पर निकाला। एक ड्रामा इस पे सेम प्रोड्यूसर्स हैं, तो उन लोगों के पास भी जो स्क्रिप्टें आती हैं वो ऐसे ही करते हैं कि वो एक स्क्रिप्ट ये देते हैं, उसको काउंटर करने के लिए दूसरी स्क्रिप्ट होता। आप सोचिए एक प्रोडक्शन हाउस एक साल में 18 ड्रामे बनाएगा तो वो क्या बनाएगा, जब सेम टीम है उसके पास 4 डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, उनसे ही वो बनवाने हैं। अच्छा उमर, यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा मैं एक इंटरप्शन थोड़ी सी ला रही हूँ इसमें, और मैं बाकी लोगों से भी चाहूंगी कि मी टू मूवमेंट को भी अगर हम साइड में रख देते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और जिस जिस तरह की होती है वो हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, बिकॉज हमने बहुत कुछ सुना है उस बारे में, टीचर्स से सुना है, स्टूडेंट्स से सुना है कि कैसे कैसे हरास होते हैं बच्चियाँ। तो जहाँ पे 95% आबादी आपकी खवातीन की हरास हो रही, तो वहाँ पे 5% अगर कोई मर्द हरास हुआ है, तो do they actually need to have a play to undermine the 95% of the population that goes through the harassment? So I would like Asha or Khabar or Bigul or Shazia, anybody to just, come up with your own. मैं आ जाऊं इस वक्त। बिल्कुल जी खबर। मैंने ये ड्रामा पूरा नहीं देखा, थोड़ा सा शुरू में देखा, मुझे उसमें दिलचस्पी नहीं हुई, या मैं उसमें इट डिडंट कैप्चर माय अटेंशन इनफ। लेकिन ये जो इशू है, लेकिन मैं इस इशू को जरूर उठाना चाहती हूँ, हरासमेंट का, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो औरतों का और लड़कियों का, या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, या बसों में, या कहीं भी। लेकिन वर्क प्लेस के अंदर देखते हैं तो उसको हमें क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं जब कोई ड्रामा बने, उसका मकसद क्या होना चाहिए? सिर्फ जो अक्सर ड्रामों में मुझे कोई उसका थ्रस्ट नजर नहीं आता। हरासमेंट का हमारा सबसे बड़ा तो ये कोशिश होनी चाहिए मेरे ख्याल से ड्रामों की, कि उसमें कि आप क्या बेहतरी लाना चाह रहे हैं माशरे में उस इशू को समझ के, और ये कि क्या एक जिस लड़की या औरत पे वो गुजरती है उसके एहसास क्या होते हैं, और उसकी इस तरह सेंसिटिविटी के साथ पोर्ट्रेयल हो, जिससे कि आप एक माशरे में सोचने पे तो लोगों को मजबूर करें कि ये बात सही नहीं है। यहाँ पर तो जो मुझे समझ में थोड़ा बहुत आया था वो तो यही था ना कि दूसरी तरफ से हरासमेंट, अगर लड़के की हरासमेंट हो रही तो क्या है, और फिर the whole thing really turned on its head। तो फिर मैं तो पूरी देखा भी नहीं, इसलिए मैं आप लोगों को सुनना चाह रही हूँ। लेकिन मेरा ये अपना ख्याल है कि इस किस्म के इश्यूज को उठाना बहुत जरूरी है, लेकिन उनको तरीके से उठाने की जरूरत है। आप उसको रीइंफोर्स ना करें अपने ड्रामों के जरिए। ये मुझे बहुत ज्यादा शिकायत होती है अक्सर ड्रामे देखे। ये नहीं है कि कुछ अच्छे ड्रामे नहीं होते, अच्छे इश्यूज पे अच्छे भी सीरियल्स होते हैं, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि बहुत अक्सर वक्त आप रीइंफोर्स करते हैं मिसोजिनी जो हमारी सोसाइटी में है, और आप रीइंफोर्स करते हैं जो नेगेटिव एक विक्टिम ब्लेमिंग को भी इनकरेज करते हैं। तो मैं यहाँ से इसको हमें देखना चाहिए, और I'm sorry that I didn't see all of it. नहीं, you're right। मैं इसमें दो चीजें बस शुरू में मैं कहना भूल गई थी। एक तो ये कि ये पूरी जो आज की डिस्कशन है वो रिकॉर्ड हो रही है, और दूसरी ये कि दिस विल बी पुट अप ऑन आवर यूट्यूब चैनल। सो अगर किसी को कहीं पे लगे कि कोई उनका कमेंट ऑफ द रिकॉर्ड है तो हमें बता दें, ताकि हम उसको उस तरह से फिर यूज ही ना करें, बजाय से कि बाद में फिर शिकायत हो कि हमने तो इस तरह से नहीं चाहा था कि हमारी ये कमेंट जो है वो यूट्यूब चैनल पे आए। और दूसरा ये कि मैंने तकरीबन 25 लोगों को इनवाइट किया था, इंक्लूडिंग द राइटर, द प्रोड्यूसर, ऑल द आर्टिस्ट्स दैट आई कुड गेट होल्ड ऑफ, जिसमें से कुछ ने जवाब भी दिया, कुछ ने कहा नहीं हम बिजी हैं, पर except for Salma Hassan, who said कि I am at a shoot, but I will try to find a quiet corner and join you people.
किसी ने आना पसंद नहीं किया। सो एक तरह से ये मुझे ये हमेशा लगता है कि ये वन साइडेड हो जाता है कि हम किसी भी प्ले की बात कर रहे हैं और उसका लिखने वाला या उसका डायरेक्टर या उसके एक्टर्स उसमें नहीं है। तो ये दो चीजें मुझे क्लियर करनी थी। आप में से बाकियों में से कोई एक अगर इसी को कि झूठ, मुझे सबसे पहले झूठ जो लगा था वो यही था कि ये लड़की ही झूठ बोल रही है। सो या बिगुल फ्रॉम यू। जी अच्छा, I haven't watched the entire show unfortunately। वो यही बात है कि और स्पेशली जब आप लिख रहे होते हैं तो आप अवॉइड भी कर रहे होते हैं बहुत सी चीजें देखने के लिए, बहुत इन्फ्लुएंस हो जाती है आपकी राइटिंग। लेकिन मैं जो बात अभी खाविन ने कही, मैं इनकी बात को ही आगे बढ़ाना इसलिए भी चाह रही हूँ कि बिफोर वी स्टार्ट दिस डिस्कोर्स कि हमें ये बहुत समझ लेना चाहिए शायद कि हम जब टेलीविजन की बात कर रहे हैं तो टेलीविजन भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है। वहाँ के प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स, एक्टर्स, देखने वाले, बनाने वाले इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं। तो जो रिफ्लेक्शन हमें नजर आ रही है, जैसे खाविन ने कहा कि इंडोर्स करते हैं और रीइंफोर्स करते हैं मिसोजिनी को, बिल्कुल करते हैं क्योंकि यही तो हमारी सोसाइटी कर रही है, दे आर पार्ट ऑफ अस। तो हम इसको एक सेग्रीगेशन में नहीं देख सकते। अनफॉर्चुनेटली बहुत इररिस्पॉन्सिबल है ये किसी भी मीडियम का इस तरह से कुछ भी प्रोजेक्ट करना, और ख़ास तौर पर एक ऐसी सेंसिटिव इश्यूज के ऊपर। लेकिन इतनी ही इररिस्पॉन्सिबल हम भी एज अ सोसाइटी हैं टुवर्ड्स ऑल दीज इश्यूज, स्पेशली वायलेंस अगेंस्ट women और हरासमेंट अगेंस्ट women, whatever। हमें इस बात से कतई नजर के औरत उसके, जैसे आपने कहा तस्लीम, कि किस चीज से गुजरती है और उसकी क्या हश्र होता है उसमें से गुजर के, उसका एक जज्बाती डैमेज कितना बड़ा होता है, इस बात से तो हमें कोई दिलचस्पी नहीं है बहैसियत एक सोसाइटी के मेंबर होने के। हमारे सामने ही है कि कत्ल और गारत हो जाते हैं और हम विक्टिम ब्लेमिंग पर ही जमे रहते हैं, और वो बात कोई बहुत अनोखे लोग नहीं कर रहे होते, हमारे घरों में वो आवाजें आ रही होती हैं, हमारे आस पड़ोस में आ रही होती है, हमारी वर्क प्लेसेस में हमारे कॉलीग्स वो बातें कर रहे होते हैं। इसलिए टेलीविजन को हम बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। टेलीविजन को हम सोसाइटी, इस माशरे का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा समझते हुए, और ये समझते हुए कि सब लोग जो इसमें काम कर रहे हैं, इससे जुड़े हुए, दे एक्चुअली बिलीव इन ऑल दिस व्हाट दे आर प्रोजेक्टिंग। और हमारा काम फिर हम डेफिनेटली उसको हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, या हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं, उसको कॉल आउट कर सकते हैं, और ये कर सकते हैं जो अक्स कर रहा है कि हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं और उसके ऊपर बात कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने जैसे सब लोगों को बुलाया और यहाँ नहीं आए लोग, तो वो बात अधूरी रहती है, वो एक डायलॉग डेवलप नहीं होता। और जी, तो वो एक कनेक्शन नहीं बन पाता हमारा। लेकिन अगर हम ये समझ लें कि टेलीविजन भी हम खुद ही हैं, हम ही हैं जो कहानियां चल रही हैं। हम चंद लोग अलग होकर ये कह सकते हैं कि हमें इस पर यकीन नहीं है, जैसे हम अपनी जिंदगियों में कहते हैं, मगर हैं हम वही। जो मेजॉरिटी है वो वही है। एग्जैक्टली यही नैरेटिव है हमारी सोसाइटी का, कुछ अनोखा नहीं मुझे नजर आता। वहाँ के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स और एक्टर्स और राइटर्स बड़ी कन्विंस्ड होते हैं इस चीज के ऊपर जो वो बना रहे होते हैं। और जैसे उमैर ने कहा कि 2 प्लेस बना दिए, एक का नैरेटिव ये ए है तो दूसरे का बी है, सो दैट्स अ वेरी सेफ प्ले एक्चुअली। ऑल दे आर बेंट ऑन इज मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, दे आर नॉट कंसर्न्ड कि हम किस चीज के बारे में बात करें। बिल्कुल ऐसे जैसे बाकी सब इदारे हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही सब कुछ है। Thank you, Bigul. Anybody else would want to take up this point, and then, or we can move on to the next one. Sorry, additional point है, sorry, मैं इसी पे ऐड करना चाह रही थी थोड़ा। बिल्कुल करें। I think thank you for having me and having this conversation. मैं इस पे, क्योंकि मैंने भी पूरा नहीं देखा, मैंने bits and pieces में देखा है, और ज़्यादातर मैं शायद चीखती रही हूँ टीवी पे। So जो bits देखे भी हैं, especially जो end में मैंने देखा है, उस पे बहुत ज़्यादा। लेकिन आई जस्ट वांट टू क्विकली से कि ये शुरू से ही प्रॉब्लमैटिक था। एंड आई थिंक जो अभी हम बात कर रहे हैं कि ये सेक्सुअल हरासमेंट और कंटेंट और इस पे बनने चाहिए, ज़रूर बनने चाहिए, लेकिन दिस प्ले वाज नॉट एक्चुअली ऑन सेक्सुअल हरासमेंट। इट्स नॉट एज दो सेक्सुअल हरासमेंट का इशू इस पे उठाया गया और उस पर कोई अवेयरनेस दी गई। इट वाज एक्चुअली ऑन फॉल्स एक्यूजेशंस। तो वो शुरू से ही, इसका प्रेमिस ही बिल्कुल अलग है। की बात कर रही थी, झूठ की, मैं वही उसी पे रख के कर रही थी। जी हाँ, सॉरी।
झूठ की जो मैंने बात की थी ना, किसमें बिल्कुल झूठ, एग्जैक्टली तो वो तो था ही झूठ पे। द होल आइडिया वाज के जो सेक्सुअल हरासमेंट है उसमें औरतें जो है वो झूठ बोलती हैं और फिर किस तरह से मैनिपुलेट करती हैं और किस तरह से पूरी फैमिली उनको सपोर्ट करती है। सो आई थिंक बिल्कुल ये वाली बात जो है बिगुल की भी यहाँ पे इज वैलिड कि हम ही टीवी हैं और हम ही इसको रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन हम तो वो भी हैं, हम तो मतलब लिखने में देयर आर आल्सो वुमेन, तो हम तो वो भी हैं जो हरास भी हो रही हैं, तो वो स्टोरीज क्यों नहीं सामने उस तरह से आती। एक एक अगर आप कर दें कि जी एक उस पे बन गया और एक उस पे बन गया, तो मुझे उससे बहुत प्रॉब्लम है। अगर हमारे इतने सारे रेप और सेक्सुअल अब्यूज पे और हरासमेंट पे बन चुके होते हैं, फिर ये एक तो दिखाते कि जी कुछ इस तरह के भी केसेस होते हैं, तो ठीक है वो एक रियलिटी हमें नज़र आती। लेकिन ये फ़ौरन के जी सेक्सुअल हरासमेंट के 2-3 केसेस उठे, मीडिया में उठे और फ़ौरन एक ये इस पे एक ड्रामा बन गया कि जी फॉल्स एक्यूजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हमारी सोसाइटी का एक इशू है, इस पे प्ले बनना चाहिए। तो ये माइंडसेट जो है जो मिसोजिनी को रीइंफोर्स करता है इज एक्सट्रीमली प्रॉब्लमैटिक। और इसमें हम आगे ऑफ कोर्स से बात करेंगे कि किस किस तरह से वो दिखाया गया, कितने कितने पॉइंट्स पे ये दिखाया गया कि औरतें क्या करती हैं। बल्कि वो सिर्फ एक उसने एक झूठ नहीं बोला, वो तो ईवल से ईवल होती गई। क्या क्या उसने आगे जाके रेप पे भी इल्ज़ाम लगा दिए और उस पर भी कर दिए, यहाँ तक कि वो किडनैप हो जाती है और वो भी जस्टिफाई हो जाता है कि वो ही एक्चुअली कमिटेड अ क्राइम, कि वो किडनैप करके कन्फेशन उसने निकलवाई। लेकिन वो इशू नहीं बना बिकॉज दैट वाज ऑल जस्टिफाइड, क्योंकि जो झूठ बोला गया था जो कि औरतें करती हैं, वो टिपिकल अप्रोच एक जो थी वो क्रक्स था प्ले का। इट वाज एक्चुअली नॉट इवन ऑन सेक्सुअल हरासमेंट। okay, anybody else who else would want to Anji, Marine also has her hand up and she raised her hand up before me, so I'll let her go first, and then I also want to add just a quick little okay, thing. okay, Marine, please, yeah. No, Sarah, you should go first because I think you need to leave early. हाँ नहीं, अभी I'll be here for a little while. मैं एक चीज कहना चाह रही थी कि जैसे उमैर ने कहा कि बैलेंस आउट वो करने की कोशिश करते हैं कि हमने कुछ प्लेज इस टॉपिक पे दिखाए तो हम दूसरे उस पे भी दिखा दें। तो एक ऑप्शन ये भी थी या हो सकती थी कि आप एक मर्द को ही हरासमेंट का ही विक्टिम दिखाएं, बट बेस्ड ऑन व्हाट, मतलब जैसे एक ऑफिस में अगर आप काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि वाकई आपका कोई कॉलीग जो है वो आपको हरास करता हो। फॉल्स एक्यूजेशन की बुनियाद पे ही हरासमेंट इसका काउंटर बैलेंस नहीं है कि अगर 4 प्लेस या 4 केसेस ऐसे आए जिसमें खवातीन हरास हुई थी, तो अब उसका जवाब यही है कि कोई ऐसा मर्द दिखाया जाए जिसको खातून ने झूठ बोल के ही हरास किया हो। एक मर्द सच्चे तौर पे भी हरास हो सकता है। छोटे बच्चों के रेप के, असॉल्ट के केसेस हम सारा वक्त अपने मीडिया में देखते हैं। तो सच की बुनियाद पे भी एक मर्द के साथ होने वाली किसी ज्यादती को दिखाया जा सकता था, ना कि झूठे इल्जाम की बुनियाद पे एक मर्द का फंसना दिखाया जाए, बिकॉज वो उसको काउंटर बैलेंस नहीं कर रहा, वो उस नैरेटिव को मजीद तकवीत दे रहा है कि खवातीन झूठ बोलती हैं और ये जितनी हैं ये अटेंशन के लिए झूठ बोलती हैं, और ये हमारा वो नैरेटिव है अटेंशन के लिए खातून झूठ बोलती है, जिसको आपके प्रीवियस और सो फार लास्ट डिक्टेटर ने भी इंटरनेशनल लेवल पे कहा कि जी ये झूठ बोलती हैं ताकि इनको वीजे मिल सके और ये बाहर जा सकें। तो ये एक बड़ा एक ऐसा नैरेटिव है जो हर वक्त आप तक पहुंचता है, हर वक्त आपकी साइकी में इसको एब्जॉर्ब कराया जाता है। तो आई थिंक कि अगर बैलेंस करना ही ख्वाहिश है, अगर यही दिखाना है कि जी सिर्फ औरतों के साथ नहीं होता, मर्दों के साथ भी होता है, तो जिन मर्दों के साथ सच की बुनियाद पे होता है, चलें उनके केसेस दिखा दें। खवातीन को, उनकी इस मूवमेंट को, इस एफर्ट को इतनी जल्दी मलाइन कर देना और काउंटर बैलेंस के नाम पे मलाइन कर देना, मैं ये नहीं कह रही कि उमैर ने कहा है कि काउंटर बैलेंस के नाम पे हो रही है, बट आई एम जस्ट थिंकिंग अलोंग दोज लाइंस बेसिकली कि आप सच की बुनियाद पे भी ऐसा कोई वाकया दिखा सकते हैं जिसमें आप खातून को मिलाइन किए बगैर मर्दों की तकलीफ को भी इशू बना के कॉन्वर्सेशन पॉइंट एक बना के पेश करें। थैंक यू सारा। यस मेरीन। सबसे पहले तो ये कि मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे ओपिनियंस जो हैं वो मेरे अपने ओपिनियंस हैं, एंड आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव दीज व्हाटएवर आई एम गोइंग टू से एंड आई स्टैंड बाय देम, बट आई डू अपोलोजाइज इफ एनीबडी फील्स हर्ट और ऑफेंडेड बाय देम। मैं बहुत सारे ड्रामे देखती हूँ, मैं सारे ड्रामे तकरीबन देखती हूँ और अनहेल्दी हद तक कंटेंट कंज्यूम करती हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो बात यहाँ पर हो रही है कि ये इसी टीम ने एक पहले ड्रामा बनाया जिसमें उन्होंने एक एक्चुअल केस दिखाया सेक्सुअल हरासमेंट का, और उसी को बैलेंस या काउंटर बैलेंस करने के लिए उन्होंने ये दिखाया। आई डोंट बिलीव इन दैट, बिकॉज जब ये ड्रामा चल रहा था उसके साथ कई और ड्रामे चल रहे थे जिसमें बार बार फॉल्स एक्यूजेशंस आ रही थी, और न सिर्फ ये कि वो खातून फॉल्सली अक्यूज कर रही है, बट वो
बिल्कुल इस कैरेक्टर की तरह मैनिपुलेट कर रही है सबको और यूज कर रही है इसको टू हर एडवांटेज। एंड आई जस्ट डोंट बिलीव कि ये चीज दिखानी चाहिए बार बार, क्योंकि ये इसमें कोई बैलेंस नहीं है, इसमें कोई, सारा की बात बिल्कुल ठीक थी, मैं उससे एग्री करूंगी। अगर वो ये दिखा देते कि हैदर ने इसको यूज किया है, हैदर ने यूज किया इस बात को और कहा है कि प्रोफेसर ने अमल को सेक्सुअली असॉल्ट किया था या अब्यूज किया था या वो उसको हरास कर रहा था, I would have found that to be a little bit more balancing, क्योंकि उसमें औरत जो है वो उस तरह से रुलती ना। या अगर वो ये दिखा देते कि हैदर जो है उसने अमल को इस्तेमाल किया है और अमल उस प्रेशर में आकर उसके साथ अग्री कर रही है, वो शायद मेरी समझ में आ जाती बात थोड़ी सी ज़्यादा। बहुत सारे ड्रामे जो और मैं देखती हूँ और उनमें सब में एक्चुअल ट्रू सेक्सुअल हरासमेंट होती है, उस सब में रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिजॉल्व द इशू को इवेंचुअली कहते हैं कि जी खुदा पे छोड़ा, खुदा पे छोड़ा। कोई एक्चुअल एक्शन नहीं होता, कोई एक्चुअल एविडेंस कलेक्शन नहीं होती, कोई एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, कोई सपोर्ट नहीं आती। जो हरबा इस्तेमाल किया हैदर ने इस ड्रामे में आखिर में अपने लिए एविडेंस कलेक्ट करने का, वो एविडेंस वो ड्रामे में कई बार कई किस्तों में कलेक्ट कर सकता था। एक सीन दिखाया उन्होंने जिसमें वो बंद कमरे में अमल से बात कर रहा है और उसका भाई बाहर खड़ा, दरवाजा बंद है और बाहर खड़ा सुन रहा है और वो सब कुछ सुन लेता है। उस दौरान भी वो कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकता था, उसका भाई भी कह सकता था कि मैंने ये बाहर से बात सुनी है। दूसरी बात ये कि लोग इस चीज को, ड्रामे में लोग ये सस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहे थे कि अमल ने उस आदमी को अपने साथ बंद कमरे में आने कैसे दिया, जबकि उसने अभी हमें कहा है कि इसने मुझ पर अटेम्प्ट टू रेप किया है। तो उसे तो उससे खौफजदा होना चाहिए, उसे तो उससे डरना चाहिए, चाहे वो उसका कजन है, जो भी है। तो ये चीजें जो नैरेटिव में थी वो मेरी समझ में नहीं आई कि ऐसा क्यों हुआ। मुझे यही लगा कि उन्होंने आखिर में मर्द के कैरेक्टर को ग्लोरीफाई किया है। बहुत सारे रिव्यूअर्स जिनको मैं सुनती हूँ उन्होंने ये भी कहा कि हैदर ने एंड में जो कुछ किया, उसने कहा कि उसने माफी मांगी उसके बारे में, तो उसने कहा कि भाई मुझे पता है मैंने ये गलत किया है, मुझे पता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। दैट इज नॉट एक्सोनरेट हिम ऑफ हिज एक्शंस। उसने एक लड़की को किडनैप किया, चाहे आप ये दिखाएं कि वो आपके साथ गाड़ी में मर्जी से बैठी है, आप उसको उसकी मर्जी के बगैर एक ऐसी जगह पर लेकर गए और उसे उसकी मर्जी के बगैर आपने एक जगह पर रखा, दैट इज किडनैपिंग। आप उससे माफी मांग के कि हाँ जी मुझे पता है मैंने गलत किया, यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ दैट लाइक दिस। मेजॉरिटी सेक्सुअल हरासमेंट जो होती है वो ऑन द स्ट्रीट्स होती है, बहुत सारे लोगों के सामने होती है। उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि विक्टिम ब्लेमिंग होती है। औरत क्यों बाहर निकली, औरत क्यों ऐसी जगह पर थी, औरत ने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए थे, वो ऐसी जगह पर क्या कर रही थी। इन सारी चीजों को परपेचुएट कर रहे हैं ये सब ड्रामे, और ये बहुत डैमेजिंग है हमारी सोसाइटी के लिए, ये बहुत ट्रॉमेटिक है हमारी सोसाइटी के लिए। एक और ड्रामा है, I know कि ये रिकॉर्ड हो रहा है and I don't want you to take this out. मैं myself, much like many other women in Pakistan, मुझे भी सड़कों पे चलते हुए सेक्सुअल हरासमेंट हुई है, ग्रुपिंग हुई है, सेक्सुअल मोलेस्टेशन हुई है। ये चीजें जब आप बाहर ड्रामों में दिखाते हैं ये हमारे लिए ट्रॉमेटिक होती हैं। जब आप एक ऐसा ड्रामा दिखाते हैं जिसमें एक सास और एक पूरा ससुराल जो है वो एक बहू पे इतना जुल्म ढा रहा है और यहाँ तक कि वो उसको जिंदा जला भी देते हैं, बच जाती है लेकिन उसको जिंदा जला भी देते हैं। मैं आपको बता सकती हूँ कि मैं वो ड्रामा देखते हुए, आई डोंट नो कि मैं वो ड्रामा क्यों देख रही थी, लेकिन वो ड्रामा देखते हुए मुझे एक्चुअल फिजिकल सिम्टम्स ऑफ PTSD हो रहे थे। और मुझे नहीं पता लोग कैसे एंजॉय करते हैं, खवातीन जिनको ये टारगेट करते हैं वो कैसे एंजॉय करती हैं। क्या हम एक ऐसी सोसाइटी बन गए हैं कि हम दूसरों के दुख में और दूसरों के गम में खुशी तलाश करते हैं, या हमें ये लगता है कि अच्छा सबके साथ यही हो रहा है तो फिर ये नॉर्मल है। एंड आई थिंक इट्स द फॉर्मर, सॉरी द लैटर, कि लोग ये ड्रामा बनाने वाले भी ये सोच रहे हैं कि चूंकि हम दिखाएंगे कि जी यही हो रहा है आपकी सोसाइटी में तो फिर यही नॉर्म है। So I disagree with all of that. Those were my initial points. Thank you. So, Alicia and Shasta, please let me know कि किसी और के अगर हाथ किसी ने raise किया, because with my eyesight I can only see. I'd like to say something. Dr. Shazia, आप बोलिए। जी। हाँ मैं आपको। Who's next? हाँ लुबना। जी लुबना। हाँ। मुझे सिर्फ ये कहना था कि जो ये ड्रामा था, मुझे लगता है ये जो ड्रामे हैं देयर अंडर प्लेइंग द होल सिचुएशन।
बेसिक फोकस होना चाहिए सेक्सुअल हरासमेंट में, और हमें बहुत सारे ऐसे ड्रामे चाहिए जो पहले ही एक्सप्लेन कर पाए कि सेक्सुअल हरासमेंट एक क्राइम है जो कि होता है, और एंड इट्स अक्रॉस द जेंडर। इस तरह किसी मेल को वही बात है कि जो कम क्राइम हो रहा है उसको हाईलाइट करके आप तमाम तर जो खौफ है और खवातीन पे जो तशद्दुद है उसको अंडरमाइन करें, या जो बच्चों के ऊपर हो रहा है। मेरे ख्याल में ऐसा कोई ड्रामा हमें हमारे राइटर्स को लिखना चाहिए जिसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट हो और उसमें शौक हो, जैसे उडारी था। उडारी पे तो बहुत हंगामे हुए थे कि बच्ची पे आप लोग ये वो चीज़ें दिखा रहे हैं जो सोसाइटी में नहीं हो रहे, और इस वाले ड्रामे पे कोई रिएक्शन नहीं था, क्योंकि पहले से ये समझा जाता है कि औरत के जो है वो तो है ही मसाइल, वही जड़ है सारे मसले की। जो हम देख रहे हैं कि नूर मुकद्दम पे भी ये गुफ्तगू हो रही है, और अभी मैं यही देख रही थी कि उसको भी ये अभी भी लोग कह रहे हैं कि वो वहाँ क्यों थी और उसके साथ ये क्यों था और फला क्यों था। These are the things that we need to focus on, and I would suggest to the writers, it's a very horrifying case, लेकिन मुख्तारा माई का जो केस था उसमें दोनों तरफ का मेरे ख्याल में पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है कि एक खातून को किस तरह यूज किया गया और किस तरह उसको इस्तेमाल किया गया जिरगा के थ्रू, कि उन्हीं को सजा दी गई क्योंकि उनके भाई को सजा मिली थी। तो हमें ये दिखाना बहुत ज़रूरी है कि ठीक है मर्दों के साथ भी जराइम होते हैं, और हो सकता है हम फोकस करें कि मेल चाइल्ड पे जो गुजर रहा है उस पे तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगी कि इस पे शायद रिएक्शन आ जाए, लेकिन वी नीड टू एक्चुअली पुट मोर इम्पैक्ट इन दीज ड्रामास। वही बात है कि हम बहुत डिसेंसिटाइज हो गए हैं, हम लोग ये चीज़ें देखते हैं, हमारे शायद हम इम्प्रिंट ही नहीं होता कि हो क्या रहा है, ये क्या जुर्म भी है, क्योंकि अक्सर अभी भी लोग कहते हैं ऐसा तो होता ही नहीं हमारी सोसाइटी में। तो पहले तो हमें ये चीज़ें एड्रेस करनी बहुत ज़रूरी हैं। तो ये जो ड्रामा था इसमें ये तो मुझे लग रहा है कि ऐसे ही लिखा गया था, काउंटर नैरेटिव भी नहीं था, दे हैड नथिंग एल्स टू शो, और स्पॉन्सर चाहिए था उनको। तो जब तक हमारे स्पॉन्सर्स को भी ऑन बोर्ड ना लिया जाए और मीडिया हाउसेस को भी ना लिया जाए, उनको समझाया जाए कि ये चीज़ भी अनफॉर्चुनेटली सेल कर सकती है, और आपका रोल एज अ पार्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी को ज़्यादा सराहा जाएगा, और आपका प्रोडक्ट इसमें somehow make it into a selling point. I don't know if that makes sense, but until we don't get everybody on board to work on this, इसका impact ऐसा ही रहेगा कि काउंटर नैरेटिव्स होते रहेंगे और जो असल क्राइम है वो छुपता रहेगा और इग्नोर भी होता रहेगा। Thank you, Lubna. Who else is there who wants to share on this particular point? तस्नीम जी। हाँ, थैंक यू। मैंने अभी काफी सारी बातें सुनी है, एंड as everybody said, Dunk was really a very mixed up play. अगर even if they started off with some good thought, it got very मतलब वो बिल्कुल ही वेवर्ड हो गया था। मगर इसमें एक चीज जो बार बार मैं भी बहुत ड्रामे देखती हूँ, as you know I watch a lot of plays, मगर एक जो चीज कॉमन थ्रेड जो सब में नजर आती है उसमें जो औरत की मलाइनिंग है ना, इट इज सो विशियस, इतनी विशियस होती है कि वो अब ऑल्दो इसमें ये केस था कि वो बंदा was sexually abused, वो उसने उस पर गलत इल्जाम लगाया, बट उस औरत को अमल को इतना ज्यादा इविल दिखा दिया कि एज इफ उसमें कोई अच्छी स्ट्रीक हो ही नहीं सकती। और हमारी जितनी मिसोजिनिस्टिक सोसाइटी है उसमें एक औरत इज इनफ कि वो उसका एग्जाम्पल आप पूरे वक्त देंगे कि देखा अमल के साथ अमल ने कैसे किया, अमल ने कैसे किया, अमल ने कैसे किया। सो ये जो बात है, और लोगों ने भी कहा कि दिस इज री-इन्फोर्सिंग द मिसोजिनिस्टिक एंड पेट्रियार्कल जो हमारा माइंडसेट ऑफ विमेन एज वेल। मतलब जैसे कि सबने कहा कि अमल के साथ बहुत ठीक हो गया, इट वाज नॉट ठीक, जो एंड में हुआ वो भी बिल्कुल ठीक नहीं था। और मुझे एक जो सवाल है मेरे पास हमेशा ड्रामों में कि व्हाई इज इट कि पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों के साथ खड़े नहीं होते हैं? व्हाई इज इट कि वो बाहर का जो दुकान का नुक्कड़ पे दुकान होगा उसके बंदे को बिलीव करेंगे जब वो कहेगा कि आपकी बेटी को मैंने ये करते देखा, और जब वो बेटी ये कहेगी कि मैंने ऐसा नहीं किया, और या बेटे ने भी कहा, तो दे विल नेवर बिलीव देयर चिल्ड्रन। दिस इज सच अ कॉमन थ्रेड अगेन इन मोस्ट ऑफ द प्लेस। I have a real problem with this because ये parents को भी एक बहुत bad light में दिखाता है, and I think the writers
जो है वो कॉन्स्टेंटली यही चीज रीइंफोर्स किए जा रहे हैं कि पेरेंट्स जो है बच्चों पे बिलीव नहीं करते, एक वो रिलेशनशिप जो बहुत खराब बताने लगे हैं, और एक ये कि जो औरत है उसी में जो खराबियां हैं कॉन्स्टेंटली वो उसको रीइंफोर्स किए जा रहे हैं। एंड ऑब्वियसली देन हमारी जो साइकी और हमारे जो मर्द है जो हम जिनको देखते हैं और जिनकी बातें सुनते हैं और जिनको जैसे नूर मुकद्दम केस में हम पढ़ रहे हैं ट्विटर पे सबके वो, और they are quite okay. I mean, they don't realize that what a heinous crime has been committed, but they are more concerned कि वो उसके साथ क्यों थी, तो why did she go and meet her, whatever. So this is again those same things are being reinforced through our plays as well. Thank you so much. Thank you so much, Fazla. I would like to know, move on to another part of the play, which was, are women the pillows or is honor the pillow? क्योंकि हमने ऑनर को जितना इस ड्रामे में इज्जत, गैरत, ये लड़की तुम्हारे घर की गैरत, ये बेटी मेरी इज्जत थी, ये बहू तुम्हारे घर की इज्जत थी, ये बीवी तुम्हारी इज्जत थी. So it was like being passed around कि ये पता ही नहीं चल रहा था कि औरत जो है वो खुद में क्या है. ये जो एक इज्जत और गैरत का बोझ हमारे जो छोटे से कंधे हैं उसके ऊपर पूरे खानदान की इज्जत जो है वो अब आ गई है. So that is something that I found very damaging कि इज्जत का जो लफ्ज है जिसको हम बार बार कहते हैं कि जी प्लीज हर चीज को आप ऑनर बेस्ड ना बनाएं. And this play kept on and on and on playing with this word izzat and ghairat. I would like to hear from other people कि ये सिर्फ मेरा ही सोचना था या इसमें और भी लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हाँ ऐसा ही था. मैं ये सोच रही थी कि इज्जत और गैरत के चक्कर में कैन एवरीवन हियर मी? इज्जत और गैरत के चक्कर में उसकी शादी जो है वो हैदर के भाई से करा दी. एंड जिस तरह का एक्चुअली जब आप एक ड्रामा लिखते हैं तो आप कैरेक्टर्स पे काम करना होता है आपको. आप एक स्टोरी भी लिखते हैं तो आपको एक कैरेक्टर स्केच बेसिक बनानी होती है और फिर आपका ओके आई जस्ट मैं ये बंद कर देती हूँ, अब शायद क्लियर आ जाए. ओके सो ये है कि एक जब आप प्ले लिखते हैं या कुछ स्टोरी भी लिखते हैं, कोई फिक्शन, तो पहले आप एक कैरेक्टर के ऊपर पूरा काम करते हैं. सो यू वर्क ऑन योर कैरेक्टर्स, राइट? तो अब अमल का कैरेक्टर अगर आपने बनाया है कि वो झूठी है और ये है वो है, तो उसके अंदर उसको एक किस्म का बहुत वो भी दिखाया कि उसके अंदर एक अकड़ है, उसमें एक अकड़ है, वो बात नहीं मानती. There's a disturbance in your voice. Okay, then कट क्या आ रही है, मैं क्या करूं? आ रही है जन्ने दे. सबको आ रही है बात? I think तस्नीम, I think आपके एंड पे है क्योंकि जिस वक्त आप अपना क्वेश्चन दे रही थी ना तस्नीम, तो उस वक्त आपके ऑडियो में इशू आ रहे थे, तो आई थिंक इशू कनेक्शन का आपके एंड पे. शाजिया की ठीक सुनाई दे रही है आवाज सही आ रही है. हाँ बिल्कुल सही आ रही है. Okay, Alicia, can you check the connect, please? Shaista and Alicia. आपका अटक रहा है जी. अच्छा नहीं, अच्छा मैं कह रही थी कि एक बोलो. When you write a character, तो आप एक स्टोरी लिखते हैं, आप कैरेक्टर पे बहुत काम करते हैं. तो अमल का जब कैरेक्टर लिखा गया है वो ऊट-पटांग हरकतें कर रहा था कि अगर वो है इस तरह की बदतमीज है और वो इस तरह से किसी को फंसा रही है और वो इस तरह की हरकतें करती है, शी इज अ ट्रिकस्टर एंड शी इज अ लायर, तो उसके अंदर एक अकड़ भी दिखाई थी. अब जब उसकी शादी जो है उसने उसको रिजेक्ट कर दिया, व्हेन हैदर फाइंड्स आउट कि ये तो झूठी है, तो उसने जब उसे रिजेक्ट कर दिया तो फिर अमल के जब पेरेंट्स ने बोला इज्जत और ये और वो, और उसका हैदर का भाई को आगे लाया गया कि इससे इसकी शादी कर दो, तो अमल अगर उसका कैरेक्टर जिस तरह का लिखा गया था उसको कभी एग्री नहीं करना चाहिए था. उसको कहना चाहिए था भाड़ में जाए हैदर, मैं किसी और से खुद ही करूंगी, अपनी मर्जी का करूंगी, व्हाई शुड आई मैरी हिज ब्रदर, मैं क्यों झुकूं.
तो इसमें जरा मुझे कैरेक्टर स्केच भी वीक है हाँ, सारों। ये सवाल भी मैंने रखा है इसमें कि शादी इज वन सोल्यूशन टू 100 प्रॉब्लम्स। कि अच्छा एक बेटी की शादी जो है वो छोटे भाई से नहीं हो रही तो बड़े भाई से कर दो, और अगर भाई की नहीं हो रही तो लड़की मतलब लड़की तैयार नहीं तो उसकी बहन से कर दो। So that issue is there, but how much of it is actually happening and how much of it is being portrayed in the dramas, because हर drama जो है तस्नीम आपकी आवाज चली गई है, मेरे ख्याल में हर आपका हैंग हो ड्रामा रहा है। जो है पे रुक गई। फ्रीज हो गई थोड़ा सा। हाँ मेरे ख्याल में तस्नीम आपका कनेक्शन जो है ना वो लैग कर रहा है बहुत। खराब हो गया। या मैं एक बात छोटी सी कर सकती हूँ? बिल्कुल क्योंकि मुझे जाना है, इसलिए मैं ये कह रही थी कि हम लोग जो बात कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं कि जो हम चाहते हैं। तो और इस वक्त क्योंकि अलावा बी गुल के कोई और राइटर तो यहाँ बैठा भी नहीं है ना, जो कि इतना एसोसिएटेड है विद दी ये टीवी ड्रामों का पूरा एक जी इंडस्ट्री जो है। लेकिन एक चीज तो जो हम चाहते हैं, लेकिन जो बात अभी उठाई थी उन्होंने कि हर एक कैरेक्टर्स को भी नहीं डेवलप करता, प्लॉट को भी नहीं। बिल्कुल, आई थिंक यू आर वन ऑफ द एक्सेप्शंस। मैंने अभी मैं बहुत कम प्लेस देखी, मैं रकीब से पूरा देखा, मुझे उसमें जो एक सेंसिटिविटी होती है, लोगों को ग्रिप भी करती है, इट इज आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। और हमारी सोसाइटी में इस तरह की बहुत सी बातें एक्चुअली होती हैं। अभी बात हो रही थी कि एक बहन से शादी नहीं की तो दूसरी से हो गई। ये एक्चुअली आई बीन टोल्ड विद इन माय ओन फैमिली कि ये भी हो चुका है कि बारात आई किसी के लिए और शादी हो गई दूसरी बहन से, क्योंकि फॉर व्हाटएवर रीजन। तो ये सिचुएशंस तो होती हैं, बट आई थिंक इट्स हाउ यू डेवलप द कैरेक्टर एंड द स्टोरी टू मेक इट even these things are realistic, जो कि हमें unrealistic लगती हैं plays में, there may be realism there also, but it's how you make it into a viable story and have something to communicate. So this is not कि हम एक play को इस तरह देख रहे हैं। हमारे यहाँ जो plays हैं, I think the industry needs to reflect and not only look at sponsors, but what they are trying to portray, which is entertaining, but which is also thought provoking. लेकिन मे बी दैट इज अ विश लिस्ट जो हमारे जहन में है। जो आपका पॉइंट है खबर के these things happen, I mean 100 more things happen in our society, उस पे इतना फोकस नहीं होता जितना इन चंद चीजों पे जिन पे नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक जो पूरा ट्रेंड है, एंड पीपल हु वॉच प्लेज दे वुड ऑलवेज सी कि जी दो खवातीन, दो बहनें falling in love with the same man, and even with the behnoi or with the devar. I mean, this may happen somewhere, but do we need to bring it out and promote it as a social norm? I have problems with that actually, कि हमारे यहाँ इतनी किल्लत है लड़के और लड़कियों की कि हम forever दो लड़कियों को एक लड़की या दो लड़कों को एक लड़की के पीछे दिखा सकते हैं। So what's wrong? I mean 50-50 की almost population है, तो ऐसा क्यों है कि in every play, almost every second play, जो लड़की है उसको अपना बहनोई पसंद आ जाएगा, या बहनोई को साली पसंद आ जाएगी, या देवर को भाभी पसंद आ जाएगी। So yeah, Mary, you have something to say, and definitely please आप बताइए जी। जी, मैं ये कहना चाह रही थी with reference to character development of बी गुल इससे ज़्यादा अच्छा रिफ्लेक्ट कर सकती हैं, लेकिन मैंने ये नोट किया है कि तमाम फीमेल कैरेक्टर्स जो हमने आज तक इस तरह के देखे हैं जो कि मैनिपुलेशन करते हैं, मैं ये नहीं कहती कि लोग मैनिपुलेशन नहीं करते, ज़िंदगी में हम सब मैनिपुलेशन करते हैं टू सम लेवल, अपना काम निकलवाने के लिए, अपनी कोई चीज़ मनवाने के लिए, वो सब मैनिपुलेशन करते हैं। लेकिन जिस लेवल के ये कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, ये रेगुलर एवरीडे मैनिपुलेशन नहीं कर रहे होते हैं, ये साइकोटिक सोशियोपैथिक लेवल के लोग दिखाए होते हैं, जिन्हें कोई किसी किस्म की रिग्रेट नहीं होती, जिन्हें किसी किस्म का कोई इमोशन फील नहीं होता। स्पेशली अमल के केस में उसे कोई इमोशन नहीं फील हो रहा था। जो शादिया ने बात की कि वो उसमें अकड़ भी थी, तो उसने ये क्यों नहीं कहा कि मैंने इसके भाई से शादी नहीं करनी, मैंने किसी और से करनी है, इसलिए कि यही दिखाया गया है कि वो एक ऐसी साइकोपैथिक किस्म की कैरेक्टर है कि उसने
जब ये देखा कि इसने मुझे रिजेक्ट किया तो इसने कहा कि अब मैं इसकी जिंदगी डिस्ट्रॉय करूंगी। और ये ट्रेंड हम तमाम फीमेल कैरेक्टर्स में देखते हैं जो और ड्रामों में भी होती हैं, जो कहती हैं कि हमें ये लड़का पसंद है और हमारी बहन को भी यही पसंद है, तो मैं बहन की जिंदगी खराब कर दूंगी लेकिन मुझे ये लड़का मिलना चाहिए है, मेरे से शादी ना हुई तो किसी से भी नहीं होगी। ये जो साइकोलॉजिकल, मतलब ये हम उनको, ये रेगुलर औरतें नहीं हैं, ये रेगुलर कैरेक्टर्स नहीं हैं, ये मेंटली अपसेट कैरेक्टर्स हैं जिन्हें हम दिखाते हैं। और आई कुड बी रॉन्ग, मैंने मर्दों को इस लेवल का साइकोलॉजिकली अनहिंज्ड नहीं देखा, कुछ हैं डेफिनेटली कैरेक्टर्स। फॉर इंस्टेंस अभी पिछले दिनों एक ड्रामा बल्कि चल रहा है, इश्क है, उसमें जो हीरो है उसने गन पॉइंट पे लड़की को राजी किया मुझसे शादी कर लो। तो ये भी साइकोपैथिक मैनिपुलेशन है, छोटी मोटी मैनिपुलेशन चलती है, मैं मानती हूँ, जो इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं पेरेंट्स करते हैं या बच्चे करते हैं या फ्रेंड्स आपस में एक दूसरे को करते हैं। लेकिन ये जो लेवल है, ये दिखाना कि साइकोपैथिक है, ये नॉर्मल नहीं है, हम इसको नॉर्मलाइज करते जा रहे हैं और वो प्रॉब्लम्स की तरफ जा रहा है। Definitely. So yeah, Fazil, you want to just add something? Yeah, I just wanted to add to Miss, I think Mehreen उनका नाम था, कि that is true कि हमारे जो characters हैं वो इतने, जितनी story haphazard होती है ना, इतने characters भी haphazard होते हैं। कभी वो character को, because they are not properly written और उसको thought out करके नहीं लिखा जाता। कोई भी हमारे जो ड्रामे हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ खत्म हो जाते हैं। मगर एंड आई एग्री विद दिस ऑल्सो कि ये जो होता है ना, एक बंदी, एक लड़का है और दो औरतें हैं, why is it, why does it every second play is like that? and especially इसमें जो ड्रामे हमारे यहाँ दिखाए जा रहे हैं, अब हम थोड़ा ढंग से हट रहे हैं, कि दो बहनों को इतनी जेलसीज में दिखाते हैं। आई मीन अभी हमने एक ड्रामा देखा था फांस, उसमें वो बहन is already in love with her brother-in-law, which is actually unnatural, कि वो उसकी बहन की जहाँ मंगनी हुई है उसी से when she, the minute she realizes कि मेरी बहन से अब इसकी शादी नहीं हो सकती है, and he is actually considered one of the rapists, among the rapists, फिर भी she goes and marries him. I mean, बहनों के रिश्ते इतने ऐसे नहीं होते हैं जो ये ड्रामे, और ये ड्रामे इतनी ज्यादा ये चीज दिखाते हैं कि बिल्कुल ये लगता है कि दिस इज द नॉर्मल थिंग। दिस इज नॉट नॉर्मल। एंड ड्रामे ठीक है, आपको लिखने हैं, आपको एंटरटेनमेंट भी देना है, उसमें पैसे भी बनाने, कमर्शियल भी करना है, बट कम ऑन, लेट्स बी अ लिटिल रियल एंड लेट्स बी अ लिटिल डिफरेंट। हमने पहले भी प्लेस देखे हैं, पीटीवी के बहुत अच्छे ऐसे प्लेस हैं जिसमें ये कोई मसाला नहीं था, but they were still watched and very keenly. So this is a new trend, and I think the writers need to come together. जैसे for example जो हमारा बहुत ही famous हमसफर प्ले हुआ था, उसमें भी क्या चीज थी, उसमें एक मदर इन लॉ थी जो किसी हद तक चली गई अपने बेटे को उस औरत से, बीवी से दूर करने में। I mean, this is, यहाँ तक भी मैंने ड्रामे देखे जिसमें सास अपनी बहू के रेप करवा देते हैं just because they don't want their son to be with that woman, despite the fact that she's become the daughter-in-law. So these kind of characters are very damaging. Because हम ये भूल जाते हैं कि हम सब पढ़े लिखे लोग नहीं देख रहे हैं ये ड्रामे। इस ड्रामे को एक बहुत बड़ी वो पॉपुलेशन देखती है जो इन ड्रामों से बहुत मरूब हो जाती हैं। What they see is what they believe in what they are seeing, and this is what they see कि if you are wearing pants and jeans you are a bad person. वो एक इतना ज़्यादा वो चीज़ embed हो गई है कि you are creating, the society is becoming like that, they're thinking like that. What? Because there are no one PTV play नहीं चल रहा था, अभी 15 चैनल पे 15 ड्रामे चल रहे होते हैं. So that is a big difference. Thank you. Okay, yeah, welcome. Who else? Yeah, Bigul. I also have to leave it. Omer, I think Omer was first, so let's. Okay, Omer, then Bigul, then Asha. जी सबसे बड़ी जो चीज हमारी है इस वक्त प्रॉब्लम है, 15 चैनल्स पे 15 ड्रामे होते तो चलता, 15 चैनल पे 60 ड्रामे हैं जो उनको देने ही देने। और उसमें आप देखिए कि टेम्पलेट उनके पास जो है वही 10 साल 12 साल पहले जो ड्रामे आए थे वो है।
अब मास में दिखाया कि एक बहन की शादी दूसरे एक लड़के से हो रही है, दूसरी को पसंद आ गया, तो हम 8 साल से वैसे ही ड्रामे बना रहे हैं। हम सफर वाली चीज में कि शादी हो गई, सास जो थी वो बुरी थी, हम वैसे ही ड्रामे बना रहे हैं। हमने एक ड्रामा बनाया जिसमें दिखाया कि मासी से मोहब्बत हो गई, अब हम हर दूसरे ड्रामे में मासी से मोहब्बत मस्ट है हमारा। तो हम तो अल्लाह माफ करे जो ड्रामे इस पर हमारे यहाँ बन रहे, डंक इंक्लूडेड, जलन इंक्लूडेड, ये सारे के सारे ये सब उन्हीं ड्रामों की कॉपी मार रहे हैं जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। और बस उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो रेटिंग्स आ जाती हैं और वो रेटिंग्स को देख देख के जो है वो एक तरह से उनको कॉपी करते रहते हैं, इमिटेट करते रहते हैं। तो हमारे यहाँ तो ना राइटर्स कर रहे हैं जो चीज़ है अच्छी, ना ही हमारे यहाँ जो है वो क्या कहते हैं एक्टर्स उस पर स्टैंड लेते हैं। कि जैसे दुनिया भर में होता है कि एक एक्टर स्टैंड ले ले कि मैं ये रोल नहीं करूंगा, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे वो रोल है, चलो कर लेते हैं, बाद में एक्टिविज्म जो है अपना वो सोशल मीडिया पे कर लेंगे। ये एक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। थैंक यू उमर। हु वाज नेक्स्ट? बीगुल। जी थैंक यू। मैं सिर्फ थोड़ा सा बार बार कोशिश ये कर रही हूँ कि मैं दूसरी तरफ की आपको दिखा सकूं शक्ल। जैसे खावे ने भी कहा कि अब मैं ही यहाँ पर मौजूद हूँ और उमर और मैं बहुत क्लोजली इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो मैं आपसे थोड़ा सा हमें देखिए, हम यहाँ बैठकर बात कर लेंगे, अभी जितना भी हम इसको क्रिटिसाइज कर लें, हम कह दें कि गलत है, ये गलत है, ये गलत है, इसको कॉल आउट कर लें, वो कोई हल निकलने वाला है नहीं। आप लोग बहुत एक नीश ऑडियंस है, थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है कि कंज्यूमर्स कहाँ हैं, कौन है, किसके लिए ये प्लेस बन रहे हैं, ये क्यों बन रहे हैं बार बार। अगर ये चीज रीइंफोर्स हो रही है तो सिर्फ हम 8 ही लोगों को क्यों कितना मसला है इस चीज का, बाकी लोग क्यों इसको इतना अप्रिशिएट करें। व्हाई वाज डंक सो पॉपुलर? दिस इज वेरी प्रॉब्लमैटिक कि आपकी एक चीज इतनी पॉपुलर हुई है इस माशरे में, हम 8 लोग बैठकर उसको बुरा कहते रहे, भले वो तो एक पॉपुलर चीज थी, उसको बाकायदा उन्होंने सेलिब्रेट किया कि हमने क्या चीज बनाई है, सारे आर्टिस्ट हम लोग उसका हिस्सा थे उस सेलिब्रेशन का भी। क्या ये सिर्फ एक ये कह देना कि ये गैर जिम्मेदाराना रवैया है, या वो इर्रिस्पॉन्सिबल है, या वो इनसेंसिटिव है, यही काफी नहीं है। पूरी हायरार्की काम करती है जब कंटेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, मैं हिस्सा रही हूँ कंटेंट डिपार्टमेंट का, इसलिए मैं जानती हूँ कि वहाँ कैसे डेवलप होते हैं आइडियाज। और जब वहाँ पर आइडियाज डेवलप होते हैं तो वो आप यकीन मानिए उनको इस चीज से कोई सरोकार नहीं है कि औरत के साथ इस माशरे में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। वो हरगिज इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है कि वो आपको कोई कंस्ट्रक्टिव चीज दें, या अगर कोई बुराई है, कोई मसला है तो उसका कोई हल तलाश करें, या अपनी औरत को ही एम्पावर करें थ्रू दिस नैरेटिव जो वो दे रहे हैं। हरगिज वहां पर ऐसा कोई सेंटिमेंट नजर नहीं आता। ये मैं बात बरमिला कह रही हूँ। और वहां पर तो बैठकर एक बहुत मैकेनिकल अंदाज में कहानियों को बनाया जाता है, और जो लोग वहां पर हिस्सा डाल रहे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सैलरीज को जस्टिफाई कर रहे होते हैं। उनके यहाँ कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। वो बिल्कुल ऐसा ही करते हैं जैसे लॉन का एक जोड़ा बनता है या प्लास्टिक का कोई बर्तन बनता है। दिस फॉर देम दिस इज जस्ट अ प्रोडक्ट दे आर सेलिंग। तो इतनी ये जो एक हमें लग रहा है कि हम बहुत संजीदगी से इस चीज को ले रहे हैं, जो कि लेना चाहिए, लेकिन हम बहुत कम तादाद में हैं। चैनल ओनर्स को यहाँ पर इस ऐसी डिस्कोर्स का, ऐसे डायलॉग का हिस्सा होना पड़ेगा। जो लोग बेसिकली यहाँ बैठे हैं, जिनकी दुकान है, जिनकी फैक्ट्री चलती है, जो बाकी लोग हैं वो तो उनके कारंदे हैं। वो कितना मैं रेजिस्ट कर लूंगी, मैं रिजाइन करके आ जाऊंगी, 2-3 और लोग कर लेंगे, बाकी लोग कहाँ जाएंगे। फिर आपकी बहुत बड़ी मेजॉरिटी है औरत की जिसकी एक अपनी इंटरनलाइज मिसोजिनी है, जिसको बहुत तकवीयत मिलती है सारे ड्रामे से। हमें वो भी एक पूरा माइंडसेट सामने रखना पड़ेगा। तो सिर्फ बैठकर ये कह देना कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, उससे कुछ हल होगा नहीं, मुझे लगता है। यहाँ पर जब तक कि हम टीवी और एयर वाई और जियो और जितने हमारे प्रोमिनेंट चैनल्स हैं, उनके एंटरटेनमेंट के हेड्स यहाँ नहीं बैठेंगे, जो ये चैनल ओनर्स हैं, मैं उनसे बहुत बार ये बात कह चुकी हूँ कि where are your success stories? Look at you. I mean, the women running one of the most popular channel in this industry. ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है उनका, ये बहुत बड़ा उनका कारनामा है। तो उनकी कहानी तो मैंने कभी नहीं सुनी, उन्हीं की ज़बानी सुननी होती। तो इस और जैसे उमर ने कहा रेटिंग आ जाती है जो कि बिल्कुल फेक है, उसके बारे में अभी आज तक हमें ऑथेंटिकली नहीं पता चल सका कि वो ठीक भी है कि नहीं है। उसको हम ये कह देते हैं क्योंकि हमें अपना सामान बेचना है, तो हम कहते हैं कि जी हमारी रेटिंग आ रही, कहाँ है मीटर्स, कितने मीटर्स हैं वो, क्या कभी उसके ऊपर कोई साइंटिफिक एक रिसर्च भी नहीं हुई
कि वो रेटिंग कहाँ से आती है। कैरेक्टर डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं, कौन करेगा कैरेक्टर डेवलपमेंट? कौन है ये राइटर्स जो ये चीज लिख रहे हैं? ये बिल्कुल उसी धड़े का हिस्सा है जिसके हम बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए उनका। और आप यकीन कीजिए कि उनकी मिसोजिनी अपनी औरत होते हुए, मेजॉरिटी हमारी औरतें हैं जो राइटर्स हैं, इतनी स्ट्रांग है कि दे लुक डाउन अपॉन राइटर्स लाइक मी, कि आप क्यों औरत को के ग्रे शेड्स को भी दिखा रही हैं। आई एग्री विद खावर जो उन्होंने कहा कि ये चीजें रियलिज्म भी है इसके अंदर। देखिए, जेड से मोहब्बत हो जाना या देवर से मोहब्बत हो जाना गलत हो सकता है, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये होता है इस जमाने में। हमें उसको किस तरह से दिखाना है, हमें उसके बारे में क्या बात करनी है, ये अहम है। कहानियां तो हमें बतानी है, बहरहाल वो डार्क स्टोरीज हैं, हमें तो भी सुनानी है। अगर हम सेक्सुअल हरासमेंट की बात करते हैं तो जैसे तस्नीम ने कहा कि मुझे कॉम्प्रोमाइज ये करना पड़ा था सिला में कि मैं वो सगे रिश्ते दिखाना चाहती थी। मैं दिखाना चाहती थी कि आपके घर के अंदर बाप से, भाई से, माँ से, मामू से, चाचा से, ताया से मोलेस्ट होती हैं बच्चियां आपके घर की। तो मुझे कहा गया कि नहीं, ये जो आप नहीं दिखा सकती, इसमें तो पेमरा नोटिस भेज देगा। पेमरा ने तो हमें फिर भी नोटिस भेजे। हमने कहा अच्छा चलो मुंह बोला भाई दिखा दो, ठीक है। ये कॉम्प्रोमाइजेस हमें करने पड़े, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आई वुड शाई अवे फ्रॉम दोस रिलेशनशिप्स which are maligned already, which are there, they exist in this society. I need to talk about them, but I should have the sensibility how to talk about that. वो कहाँ से आ रही है? वो तो वही मेजॉरिटी है जो ये देखती भी है, इसको एंजॉय भी करती है। आपके घर में जितनी हाउस हेल्प्स हैं, उनको तो मोहब्बत इश्क हो गया होगा डांस से, वो तो बाकायदा देखती हैं ये चीजें, और उनके घरों में ये चीजें हो रही हैं। वही रिफ्लेक्शन है, वही घूम घूम के हमें सामने नजर आता है। तो थोड़ी हायरार्कीज देखनी पड़ेंगी कि कंटेंट डेवलपमेंट कहाँ से काम हो रहा है, कौन बैठ के डेवलप कर रहा है, व्हाट आर द चैनल ओनर्स डूइंग, व्हाट आर द प्रेसिडेंट्स एंड द सीईओज ऑफ ऑल द चैनल्स डूइंग, वेयर आर दे? उनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, वो बहुत बहुत अहम है। Tasim, that will be a huge success if we can bring one of them to the table. Bigul, before we go to Aksha, I'll just share a few things that Aks tried. I mean, आपको पता ही, आप पिछले दिनों प्रेस क्लब में भी हमारे साथ थे, आपको अंदाजा था कि हम किन लोगों में बैठ के और किस इश्यू पे हम बात कर रहे थे। अभी ट्विटर पे मेरा जिस्म मेरी मर्जी पे मैंने लिखा, और मैंने यही लिखा कि मर्दों को सिर्फ ये नज़र आता है कि जो औरतें, क्योंकि नूर मुकद्दम के तस्वीर के साथ साथ बार बार ये आ रहा था कि अगर इस तरह की ख़वातीन औरत मार्च में हिस्सा लेंगी तो उनके साथ यही होना है। सो आई टुक अप मेरा जिस्म मेरी मर्जी एंड आई सेड कि काश कभी आप उन बच्चियों से पूछ लें जो घरों के चार दीवारी के अंदर अपने मामा, चाचा, बाप, भाई, हत्ता के दादा के हाथों, नाना के हाथों रेप होती। इंसेस्ट इज अ फैक्ट इन अ कंट्री, नॉट टॉकिंग अबाउट। और उस पे आप ये सोचें कि इतने कमेंट्स आए हैं कि जी आप किस जगह की बात कर रही हैं, ये हमारे मुल्क में होता है? आपने कभी महज़ब आपने उन माशरों को देखा है जहाँ पे व्हाट डिड दे से यंग अनमैरिड कपल्स, मोरालिटी। सो आई सेड कि आप अपने मुल्क की फिक्र करें, दूसरों को छोड़ दें, and these things happen and I actually shared a few clippings जो उसके पर थी। उस पे भी यही था कि ये चीज़ें जो हैं ये डिस्कस करनी ही नहीं चाहिए। आप जो बात कर रहे हो कि चैनल के हम टीवी वालों ने मुझे बुलाया था एक पैनल डिस्कशन में जो उनके किसी इवेंट का हिस्सा था। I was the only one who spoke on the issue, otherwise everybody was talking about something else, and I was amazed कि हम आए किस लिए हैं और हम बात किस चीज़ पे कर रहे हैं। तो मसला ये है कि जहाँ पे लोग जो इस ड्रामे के लिखने वाले थे, जो डंक जिसके लिए हम आज जमा हुए हैं, जब वही शाय अवे कर जाते हैं, और जबकि मैंने वॉइस मैसेज भेजा कि प्लीज ये ना समझे कि हम आपको किसी कटहरे में खड़ा कर रहे हैं, वी जस्ट वांट टू हेयर यू कि आपने किस जगह पे सोचा कि हमें ये ड्रामा लिखना चाहिए और क्यों लिखना चाहिए ऐसा, और वो एक्टर्स जिन्होंने एक्ट किया क्यों किया। बट नन ऑफ देम, नॉट अ सिंगल पर्सन रिस्पॉन्डेड एक्सेप्ट फॉर 2 जो आज फिर भी शामिल नहीं है। So, and I do reach out to all the top news channels
और उस पे भी असर नहीं होता कि जियो अभी भी गाने चलाता है गमगीन नूर मुकद्दम के कत्ल पे. जी. having बिल्कुल access to the MD, to Director News, directly talking to them and having been engaged with them for over 20 years, फर्क नहीं पड़ा. तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ से सिरा पकड़ूं कि कुछ बेहतर हो जाए. And for me, discussions like these may lead to something. I'm not too sure, but I'll go to Asha now because मेरे लिए तो यही एक प्लेटफॉर्म है कि मैं लोगों को जमा करूं जितनों को कर सकती हूं और इस तरह की कुछ डिबेट हो जिससे कुछ नई चीज सामने आए. ऑडियंस कौन है, ऑडियंस रिसर्च क्यों नहीं होती हमारे यहाँ, कौन करेगा, stuff like that. So Asha, you wanted to say something? Yeah. जी, I did. I think वो बहुत सारे पॉइंट्स मेरे मिला के होंगे, काफ़ी देर से पॉइंट जहन में आ रहे थे. एंड आई थिंक आई एम प्रिविलेज्ड इन द सेंस कि शायद मुझे सॉल्यूशंस जो आप लोग कह रहे हैं, ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट. आई थिंक मैं अभी उस स्टेज पे ही नहीं हूँ. मैं सिर्फ वो गलत है वाली स्टेज पे हूँ जो बिल्कुल कह रही थी कि उसका फ़ायदा नहीं होगा. बट आई एम स्टिल देयर बिकॉज आई थिंक यू नो एज एन एक्टिविस्ट एंड वर्किंग ऑन दिस इशूज़, वो आपको बहुत सारी चीज़ें जो स्टैंड आउट करती हैं. मेरीन ने भी एक बात की, इम्पैक्ट ऑन सर्वाइवर्स, और आपने भी इज्जत की जो बात की. ये दो चीज़ें थी जिनके बारे में मेरे जहन में चीज़ें आ रही थी. एक तो आई थिंक जो इम्पैक्ट है बेशक उनका ना हो, एंड आई थिंक आई हियर दैट पॉइंट अबाउट द फैक्ट कि वो सिर्फ एक ड्रामा है और इसमें एक एंटरटेनमेंट है और वो कुछ सोच नहीं रहे. बट फिर भी इस तरह के जब ड्रामे बनते हैं जिसमें इतना स्ट्रॉन्ग एक पॉइंट थ्रस्ट हो रहा हो, तो मुझे लगता है कि कुछ तो मुझे लगता है कि कोई एजेंडा यहाँ पे तो था. आई मीन द एजेंडा वॉज टू शो द वुमन एज अ लायर, and very clearly to also show के जो you know the men in it were the victims. चाहे वो हैदर हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे वो अमल्स फादर, वो भी सुसाइड उन्होंने भी कर ली. मैं सर झुका के अपनी बेटी, मैं सर उठा के देखता था और अब मेरा सर झुक गया है, वही इज्जत वाली बात. इट वाज ऑल द मैन, द फादर इन लॉ जो बहुत प्राइड से यू नो अमल्स फादर इन लॉ, तो वो सारी सिंपथीज वहीं पे थी विद ऑल द मैन. और मैं सोशल मीडिया पे भी जो फॉलो कर रही थी कि वो हैदर का कैरेक्टर, एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल जब उसको पता चलता है और हैदर पे क्या गुजरती है. एंड जो उन्होंने वो इतना गलत, एक इनएक्यूरेट वो दिखाया कि जब फॉल्स एक्यूजेशंस होती हैं तो किस तरह, कौन से लोग थे अक्यूज जिनकी जिंदगियां इस तरह से डिस्ट्रॉय हुई हैं जिस तरह उन्होंने प्रोफेसर का दिखाया. हिज वाइफ कम्स एंड मेक्स दैट स्पेस, पूरी स्पीच आके व्हेन शी हैज दैट यू नो कोर्ट में कि हमारे साथ ये हो गया और बच्ची के साथ ये हो गया, यू नो, तो वो सारी सिंपथीज उस पर चली गई कि मैं बेवा हो गई, मेरी बच्ची यतीम हो गई. सो वो सारी सिंपथीज कि वो जिंदगियां डिस्ट्रॉय हो जाती हैं उन मर्दों की. सो वो इम्पैक्ट तो आई मीन आई वाज जस्ट थिंकिंग कि क्या ऑल द वुमेन हु आर सर्वाइवर्स या विक्टिम्स अभी भी जो ये प्ले देख के क्या उनको मैसेजेस मिल रहे हैं कि आपको किस तरह से दिखाया जा रहा है, एंड पूरी सिंपथीज. इट वाज अ वेरी क्लियर एजेंडा फॉर मी द वे इट वाज गोइंग. इट डिडंट फील लाइक इट वाज जस्ट अ स्टोरी. इट फेल्ट लाइक इसका एक पूरा पॉइंट था कि अमल को बुरा से बुरा दिखाओ, बाकी सब मर्दों को अच्छा से अच्छा दिखाओ. लिटरली ऑल द मैन, इफ यू थिंक अबाउट इट, इस प्ले में उनको एक बहुत पॉजिटिव लाइट में दिखाया गया और इतनी सिंपैथी. जी, सो दैट फॉर मी रियली स्टूड आउट इन अ वेरी स्ट्रांग वे कि वो चाहे वो डायरेक्ट विक्टिम्स थे, चाहे वो रिलेशनशिप्स थी, उनके सर झुक गए और उनकी नाक कट गए और उनकी जिंदगियां डिस्ट्रॉय हो गई बिकॉज ऑफ दिस वन इविल वुमन एंड साइकोपैथिक, as Mehreen said. There was another thing which I noticed, and I'm sure वो बहुत सारे ड्रामों में होता है, मगर इसमें खास तौर पे मैंने देखा शुरू से आखिर तक, there were 1, 2, 3, 4 or 5 women around. सवाई जो प्रोफेसर की बीवी थी, उसका नाम मैं भी सो भूल रही हूँ. हाँ, सो उनको कहीं ना कहीं कुछ काम करते हुए दिखा दिया कि वो उठ के उन्होंने कुछ काम किया. None of the other women, Amal's mother, Haidar's mother, Amal herself, Manal, all they did were to go to the kitchen to fetch a glass of water or make coffee for the husband. I mean, what do women in our country do? Is it all that they do? कि वो कॉफी बना, और वो मजे की बात ये थी कि एक ही काला मग था जो हैदर के घर में भी था,
जो मनाल के साथ जो मनाल जिसमें कॉफी बनाती है वही अमल के घर में भी था और वही प्रोफेसर के घर में भी था. So there was one black mug. बहुत सिंबॉलिक था वो तस्वीर. या और जिसमें कॉफी नहीं थी because you could see कि वो सिर्फ pretend कर रहे हैं because there's not even a little bit of froth जो कॉफी का आपके मुंह पे आता है. But my point was कि खवातीन सुबह से तैयार होके साड़ी पहन के और बन के ये सिर्फ किचन में टहलने का काम इनका होता है और अपने शौहरों को ये कहना कि हाँ जी आपने सही किया, हाँ जी आपके लिए अच्छा खाना लग गया. I mean, is that what women in Pakistan do? I mean, be realistic. ये खवातीन बिगुल आपका पूरा जो सिला मैं सिर्फ दो आपको छोटी सी बातें क्विकली मैं बताना चाह रही हूँ. बहुत से लोग बात करना चाह रहे हैं. आशा ने कहा कि एजेंडा था. आशा बिल्कुल एजेंडा था. मैं यही बात तो इतनी देर से कह रही हूँ कि अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि एजेंडा नहीं था, एजेंडा था. मगर वो एजेंडा क्या था जो उमैर ने कहा कि यार थोड़ा डिफरेंट करते हैं ना. उन्होंने ये चीज बनाई थी, अब हम ये नैरेटिव बनाते हैं. ये जितना भी आपको बिजार साउंड कर रही है मेरी बात, ये एक्चुअली यही है. इसका सच्चाई यही है कि अच्छा हम कुछ अलग करते हैं. उन्होंने औरत को अगर मार पड़वाई थी, हम मर्द को मार पड़वा देते हैं और वाइस वर्सा. ये इतना ही बिजार, इतना ही इररिस्पॉन्सिबल और इतना ही स्टूपिड होता है. मगर ये एक एजेंडा जो है वो इतना ही है. दूसरी बात जो तस्लीम नहीं गई कि घर के कोई काम नहीं करती तैयार होके टहलने के या चाय बना देने के या कपड़े इस्त्री कर देने के या आप कैसे हैं या मैं फ्रेश होके आती हूँ. मगर वो उसकी वजह है. आप अगर थोड़ा सा पॉलिटिकली भी देखें इस जो आपके पॉलिटिकल सिनेरियो है तो आपका प्ले घरों के अंदर शिफ्ट किया गया है. आपकी औरत को ये बात बताई गई है कि बाहर की दुनिया से आपका कोई कनेक्शन नहीं है. बाहर जो कुछ बेटा हो रहा है वो तुम्हारा काम नहीं, वो मर्दों का काम है. तुम्हारी इस चार दीवारी के अंदर के प्रॉब्लम्स हैं, यही तुम्हारे इश्यूज हैं और इसी से रहो. तो ये तो एक सिस्टमैटिक और बड़ा पॉलिटिकली इस चीज को लेकर आए गए हैं. ये तो वो नैरेटिव है और ये हमारे मीडिया के अंदर हमें नजर आता है. तो औरत संवर के तैयार हो जाए, खाना लगवा दे. देखें मैं नाम नहीं दे रही, मुझे बहुत बड़ी एक 2-3 राइटर्स ने ये कहा कि स्क्रिप्ट तो होती रहेगी, फुल्का मैं अपने मियाँ का खुद डालती हूँ. ठीक है, तो अब ये वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम? एंड वो आई वाज शॉक्ड कि ठीक है आप बेशक अपने मियाँ की रोटी बना लें खुशी से या कभी वो बना लें आपकी, लेकिन ये इतना इसको इतना आप वोकल क्यों हैं इसके ऊपर? तो हमें तो ये बात सिखाई गई है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें कहा गया है कि आपकी कहानियां, औरत की कहानी और औरत की जगह घर की चार दीवारी के अंदर है. बाहर ना आपको कोई काम करने जाना है. अगर काम करने जाओगी तो फिर हरासमेंट होगी. अगर काम करने जाओगी तो सर से दुपट्टा उतरेगा तो तुम बुरी औरत हो जाओगी. तुम जीन्स पहनोगी तो तुम बुरी औरत हो जाओगी. तो तुम्हें बिल्कुल वही नूर के जो केस में है कि वहां क्यों गई थी, तो यू स्टे इनसाइड योर हाउस. तुम्हारी कहानी भी वहीं की है, तुम्हारा प्रॉब्लम भी वही है, तुम्हारी रिजॉल्व भी वो वही होगा, बाहर नहीं जाना. तो ये तो एक बहुत पुराना मतलब ये तो हमें ज्यादा दौर से शुरू हुआ था जब नैरेटिव चेंज होने शुरू हुए थे हमारे प्लेस के. ये तो हम तब से देखते हुए आ रहे हैं. और क्योंकि हमारा एक कल्चरली हमने बिल्कुल सरेंडर कर दिया, तो जो हमारा टेलीविजन था या जो भी परफॉर्मिंग आर्ट था, जो एक कल्चरल एक रिजिलियंस आनी चाहिए थी, अनफॉर्चुनेटली वी गेव इनटू दैट कि अब हम कल्चरली तो कहीं रिजिलियंट नहीं रहे हैं किसी भी ऐसी चीज को रोकने के लिए जो औरत के खिलाफ जाती हो या मर्द के खिलाफ जाती हो, किसी भी जेंडर बेस्ड उसके ऊपर अगर वो बात हो. तो ये एक बहुत लंबा होमवर्क किया गया है. हम हंस के कहते थे कि औरत का यही काम रह गया. उन्होंने हमें ये बात समझाई है कि औरत का सीधे काम है, बाहर बुरी औरत निकलती है. Yeah, because I think almost every second play has this sentence somewhere कि जी आप फ्रेश हो लें, मैं चाय लेके आती हूँ. या आप फ्रेश हो लें और मैं there's quite an obscenity in it. So very vulgar thing to say. From that तो जो बात आशा कर रही थी कि मुझे वो जो कोर्ट सीन थे वो मुझे कुछ कॉमेडी कुछ मतलब they were on a very serious issue. फॉल्स एलिगेशन पे 5 साल की सजा किसको होती है, सेक्शन 449C या B उन्होंने कुछ बताया. वी डोंट हैव एनी लीगल एक्सपर्ट हियर. आई वाज होपिंग कि कोई होता तो हमें बताता कि एक्चुअली
और जिस तरह से वो चीखा जा रहा था कोर्ट में, और जो डिफेंस लॉयर थी वो जो चुप करके बैठी हुई थी और बोल नहीं रही थी. So I don't know if Mohsen, who was the writer, has ever been inside a court himself to have seen कि वो कोर्ट के अंदर जब इस तरह के केसेस आते हैं तो वो पेश कैसे किए जाते हैं. आई विश मोहसिन वाज हियर. मैंने उसको बड़ी मिन्नतें तरल्ले की थी कि आप प्लीज आ जाएं ताकि अपना व्यू पॉइंट आप हमें दे सकें, बट वो नहीं आ पाए. उमैर, आप प्लीज मेरा कन्वे कर दीजिएगा उन तक मैसेज कि हमने बहुत मिस किया उनको. हमने बहुत कोशिश की थी कि बात हुई होगी. उमैर, आपकी बात नहीं हुई राइटर्स से? आपने रिव्यूज किए? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वैसे भी कोर्ट में इतना चीख नहीं सकते, कंटेम्प्ट हो जाता है. ये मेरा ख्याल में किसी भी राइटर को आज तक नहीं पता चला. सेकेंडली, बीगल कह रही है ना कि घर के खवातीन को कहा जाता है कि घर के अंदर ही रहें. तो मेरे ख्याल में फिर राइटर्स को चाहिए कि वो घर में ही से स्टोरीज लाएं, क्योंकि खवातीन की काफी स्टोरीज घर में भी हैं. तो अगर वहीं से हम फोकस कर लें, जो वो सेक्सुअल हरासमेंट और डोमेस्टिक अब्यूज और जो भी वो इश्यूज घर के चार दीवारी के अंदर फेस करती हैं, उसी पे मतलब कहानी और ड्रामे अगर लिखे जाएं, उनको आप ग्लैमराइज भी कर दें, उसमें आप वैम्प एलिमेंट भी डाल दें क्योंकि वो बिकता है. मेरा सिर्फ ये एक सवाल है कि जब पीटीवी था तो वहां पर एक प्रोग्राम आता था जिसमें वो राय आती थी, आवाम अपने खत लिखते थे. अब सोशल मीडिया, एवरी चैनल शुड हैव रिएक्शन, ऐसा कुछ प्रोग्राम होना चाहिए जो वहीं पर रिव्यू हो और आवाम की ही राय वहां पर पेश की जाए. तीसरी चीज, आखिरी बात मैं कहना चाह रही हूँ कि कटाकट है और ये बहुत सारे सोच वीडियोस हैं, ये इस तरह का कंटेंट पेश करती हैं जो कि हमारी ऑडियंस देख रही होती है. तो मेरे ख्याल में ये कहना कि जी हमारी ऑडियंस यही मांग रही है, तो अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे चले जाएं तो वहां पर ऑडियंस बिल्कुल अलग चीज मांग रही है और उन चीजों का बहुत ज्यादा रिएक्शन और पसंद भी किया जाता है और उनको वहीं पर नजर आता है कि उनकी कितनी डिमांड और कितनी वैल्यू है. अगर हमारे राइटर्स और चैनल्स टिकटॉक पे ही देख लें तो ये जो छोटी सी एक मेजॉरिटी जिसको ये मौका मिल जाता है कहने के लिए कि हमारी माशरे के खिलाफ है और ये हो चीजें हमारे इसमें बुराइयां फैला रही हैं, मेरे ख्याल में वहाँ जितने लोग नाच रहे हैं और जिस क्लास से वो नाच रहे हैं और गा रहे हैं और एक्टिंग कर रहे हैं, अगर हम उसको प्रोपेगेट करें और दिखाएं कि आवाम जो चाह रही है वो शायद ये नहीं है, लेकिन वो इसलिए सोशल मीडिया की तरफ जा रही है, वैसे भी जा रही है, तो और वहाँ का जो कंटेंट है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है. नॉट दैट आई एम सेइंग कि यहाँ पर भी आप वही चीजें दिखाएं, लेकिन वहाँ पर जैसे वो छोटी छोटी वीडियोस बनाते हैं, बहुत थॉट प्रोवोकिंग होती हैं और यंगस्टर्स बना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ऑडियंस और कंटेंट क्रिएटर्स जो थोड़े से सीनियर हैं, थोड़े से जूनियर हैं, उनको मिलके कंसोलिडेट करके ऐसे कोई वेंचर्स करने चाहिए जिसमें आप मॉरल्स भी सिखाएं, आप मसाइल भी करें और उसके रेजोल्यूशंस सीनियर जनरेशन एंड द करंट जनरेशन जो कि सोशल मीडिया savvy है. आई थिंक वी नीड टू वर्क टुगेदर. और क्योंकि टीवी का दौर अब मेरे ख्याल में खत्म पे है पूरी दुनिया पे, सोशल मीडिया की तरफ आ रहे हैं, अटेंशन स्पैन चेंज हो रहा है, ऑडियंस चेंज हो रही है, मूड चेंज हो रहे हैं. बहुत सारे ऐसे जिन चीजों का हम मॉरलिस्टिक समझते थे या हमें जो सिखाई गई थी हमारी जनरेशन को, अगली जनरेशन उसको अलग तरीके से देख रही है. उनके बहुत ज्यादा हमसे ज्यादा वोकल हैं, दे हैव मोर एक्सपोजर. तो मेरा ये ख्याल है कि बेहतरीन हमारे पास राइटर्स हैं, बीगल हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लिखते हैं और बहुत अच्छी चीजें लिखते हैं. उनको ये इनकॉर्पोरेट करें, यंगस्टर्स के साथ डायलॉग करें, उनके साथ मिलके अच्छा कंटेंट बनेगा तो, और बन रहा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. लेकिन थोड़ा सा हमें पैराडाइम चेंज करना पड़ेगा. वी हैव टू लुक थ्रू द ऑडियंसेस आईज टू सी क्या क्लिक करेगा इस जमाने में जब अटेंशन स्पैन सिर्फ 3 मिनट है. तो मेरे ख्याल में हमारी जनरेशन इज डाइंग आउट कि हम इतने लंबे, मैं भी नहीं देख पाती इतने लंबे लंबे चीजें, जबकि मैं अभी बुजुर्गों में अब शामिल अपने आप को करने लगी हूँ. लेकिन मेरे ख्याल में कि वी नीड टू रीथिंक द वे वी प्रोड्यूसिंग द कंटेंट एंड फोकस ऑन थिंग्स दैट आर मोर रेलेवेंट. ज़ाहिर मैं तो नहीं लिखती तो मैं इसलिए नहीं कह सकती, मैं ड्रामे नहीं लिखती, लेकिन आई थिंक people need to really rethink the way we're developing the content, and maybe we can counter the traditional media with the newer media. तो मेरा लुबना जो आपने पॉइंट्स रेज किए मैं चार्ट में भी देख रही थी, देयर वर सम वेरी गुड पॉइंट्स, लेकिन मेरे 2 सवाल भी हैं. एक तो ये चीज जैसे बीगुल ने भी कहा कि भाई क्या हम 8-10 लोग ही हैं जिनको प्रॉब्लम है. सो
एक तो ये भी ऑप्शन है ना, हम आप लोग मुझे बताइए कि इज दिस रीजनेबल टू कंसिडर कि भाई जब इतनी ऑप्शंस हैं, जिसको नहीं पसंद वो ना देखे। मतलब चैनल वाले आपको ये भी तो कह सकते हैं, और जो लिख रहे हैं वो भी ये कह सकते हैं कि भाई आपको इस पे प्रॉब्लम थी, आप ना देखते, मैंने ये ड्रामा नहीं देखा क्योंकि मुझे इससे थी प्रॉब्लम। और जहां तक सोशल मीडिया की बात है, बिल्कुल अच्छा काउंटर उसका मतलब आई वुड से कि आई प्ले द डेविल्स एडवोकेट टू व्हाट आई हैव जस्ट सेड। सोशल मीडिया है अवेलेबल, लेकिन पाकिस्तान में खवातीन की परसेंटेज ऑन सोशल मीडिया इज मैसिवली स्मॉलर कंपेयर टू जितने आदमी हैं सोशल मीडिया पे। हमारे अपने फेसबुक पेजेस पे जब इनसाइट्स में जाके अगर आप देखें तो 90-95% जो है वो आदमी होते हैं और 5% से भी कम औरतें होती हैं। तो एक सवाल जहन में ये आता है कि ठीक है, नहीं पसंद तो मत देखें, सोशल मीडिया पे चले जाएं। सोशल मीडिया पे प्रॉब्लम यह है कि सोशल मीडिया पे खवातीन नहीं है, वहां पे ज्यादा मर्द हैं। तीसरा इशू वही जो हमने पहले भी बात की कि किस ऑडियंस के लिए बन रहा है। तो टीवी की तो ऑडियंस में मेजॉरिटी खवातीन ही हैं, और खवातीन ही इसके खिलाफ उतने मैसिव तरीके से आके बोल नहीं रही हैं। तो डू दे लाइक व्हाट दे आर वाचिंग, और डू दे जस्ट नॉट हैव एक्सेस टू कन्वे that what is being aired is not something that they would like to see. So I know I don't have the answers, I have more questions, but I feel कि ये सारी चीजें जो हैं ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को टाई अप भी करती हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्रॉस आउट भी करती हैं कि क्या खवातीन ये एंजॉय कर रही हैं, या खवातीन के पास वो मेगाफोन नहीं है जिसके जरिए वो ये बता सकें कि दिस इज नॉट समथिंग दैट दे वांट टू वॉच। एंड एट द एंड ऑफ द डे it's a capitalist society and they're trying to all make money. So is it even fair to say कि जी ये कोटा होना चाहिए, या अगर आप 3 ड्रामे ऐसे बना रहे हैं तो खुदारा 2 ड्रामे ऐसे भी बनाएं? Who are we to dictate? उनका बिजनेस है। जब कोई फास्ट फूड बेचता है तो आप फास्ट फूड उनके लिए है जो उसको खाना पसंद करते हैं। आपको अनहेल्दी लग रहा है, आप ना खाएं, आप जाके सैलड खा लें। So how do you affect demand in a capitalist society? सारा का एक क्वेश्चन तो मैं आंसर करना चाहूंगी कि जो खवातीन देख रही हैं क्या वो इंजॉय कर रही हैं या क्या है। वो इसलिए देख रही हैं क्योंकि उन्हें ये देखकर ये फील होता है कि अच्छा जो मेरे साथ हो रहा है वो तो सबके साथ हो रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि ये नॉर्मल है, तो फिर मुझे इसके बारे में शिकायत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो सबके साथ होता है। तो वो जो नॉर्मलाइजेशन है नैरेटिव की, उसकी वजह से वो जो आपकी मेजॉरिटी खवातीन है सारा, वो कंप्लेन नहीं कर रही हैं क्योंकि वो ये समझती हैं कि ये तो सबके साथ हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये एक्सेप्टेबल है और ये नॉर्मल है, एंड आई डोंट नीड टू कॉल दिस आउट। मैं एक बात करना चाहूंगी, बीगुल की तकरीबन तमाम बातों से मैंने अग्री किया, एक छोटी सी बात से मैंने डिसएग्री किया। मैं लुबना ने कहा कि सोशल मीडिया के बारे में बात की जाए। ये सबसे बड़ी बात जो बीगुल ने की कि ये एक बहुत बड़ा एजेंडा है सोशल मीडिया पे, डेफिनेटली आपको चेंज नजर आ रहा होगा लुबना। और बीगुल ने जो बात की कि ये एक एजेंडा है कि हम इस चीज को, उसको जो सोशल मीडिया पे चेंज नजर आ रहा है उसे डैम्पन करें, उसे कैप करें किसी तरह, और वो जो आपका एक रेगुलर नैरेटिव है वो उसको परपेचुएट करें, क्योंकि हम चेंज नहीं चाहते, क्योंकि चेंज इज टेकिंग पावर आउट ऑफ द हैंड्स ऑफ द रेगुलर पावर होल्डर्स, और उसको हम कैप करने के लिए ये सारा नैरेटिव जो है वो परपेचुएट करें। मिनाल का कैरेक्टर इस स्टोरी में, हमने जो बात की डंक के बारे में बात करते हुए वापस, मुझे मिनाल के कैरेक्टर से भी बहुत प्रॉब्लम थी क्योंकि अमल ने उसको मैनिपुलेट किया। उसने उसको जाकर कहा कि हैदर को इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। ये सॉरी मेरा ख्याल है आशा ने ये बात की थी शायद, कि तमाम मर्द जो थे वो बेचारे दिखाए गए थे उस सिचुएशन में। तो इसी चीज के ऊपर कैपिटलाइज करते हुए अमल ने भी कहा मिनाल को कि वो बहुत इस वक्त टूटा हुआ है और उसे सिर्फ तुम जोड़ सकती हो उससे शादी करके। तो ये चीज क्यों, ये एक्सपेक्टेशन है कि औरत जो है उसकी ये शादी होगी और वो किसी को संभालेगी। ये मिनाल के कैरेक्टर्स भी मुझे प्रॉब्लम थी, जो वो बाद में इतनी स्ट्रांग हुई और अपने हस्बैंड के साथ उसने स्टैंड लिया, उसको सपोर्ट किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन वो क्या वो पहले भी वो स्टैंड ले सकती थी और कह सकती थी कि नहीं मैं उसको एज अ फ्रेंड सपोर्ट कर सकती हूँ, मुझे उससे शादी करने की जरूरत नहीं है, मैं उसको उस तरह से मैंने कभी नहीं पसंद किया, तुम मुझे क्यों कह रही हो कि मैं उससे शादी करूँ, दिस इज सो रॉन्ग इन सो मेनी वेज। मुझे उसके कैरेक्टर से भी बहुत प्रॉब्लम थी, मुझे उसके भाई के कैरेक्टर से भी बहुत प्रॉब्लम थी, जो
मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, हैदर के भाई से के कैरेक्टर्स भी बहुत प्रॉब्लम थी। उसकी कोई बैकबोन नहीं थी, उसने कोई स्टैंड नहीं लिया, उसने नहीं कहा कि ये गलत है, आप वो दोनों आपस में एक दूसरे को बचपन से या जितने भी अरसे से पसंद करते हैं, आप क्यों उसको मेरे साथ जोड़ रहे हैं। मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी इन चीज़ों की। बिगुल ने एक बात की थी कि नैरेटिव हमारा जो है वो घर के अंदर है, औरत को ये बताया गया कि आपकी जगह घर के अंदर है, और ना सिर्फ घर के अंदर है बल्कि बावर्ची खाने के अंदर है, और आपकी प्रॉब्लम्स का जो रेजोल्यूशन है वो, इधर मैं आपसे बिगुल थोड़ा सा विद रिस्पेक्ट डिसएग्री करूंगी। आपने कहा कि घर के अंदर रेजोल्यूशन होगी, मुझे ये लगता है जो मैंने देखा है ड्रामों में, वो नैरेटिव ये है कि औरतों की जो प्रॉब्लम है उसको खुदा सॉल्व करेगा, उसे कोई और सॉल्व नहीं करेगा, वो अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह खुद बताएगा, वक्त के साथ सजा मिलेगी, औरत सब्र करती जाए, औरत कुर्बानी देती जाए, एक वक्त आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये भी गलत है। आप औरत को वो सपोर्ट दे ही नहीं रहे कि वो अपने लिए आवाज उठाए। ये बात जो आपने की कि वो औरतें जो देख रही हैं क्या वो एंजॉय कर रही हैं, उन्हें ये लेसन दिया जा रहा है कि आप सब्र करें, आपका वक्त आएगा, सब कुछ ठीक हो मैं तो जाएगा। एक्चुअली यही पॉइंट रेज करना चाहती थी कि अगर वो एंजॉय नहीं कर रही तो द लॉजिस्टिकल रियलिटी इज कि उनके पास वो मेगाफोन नहीं है अभी तक, क्योंकि उनका सोशल मीडिया पे वो प्रेजेंस है ही नहीं। मतलब वो नहीं भी एंजॉय करी तो उनके पास ये एवेन्यू नहीं है कि वो, एंड जस्ट इन प्योर नंबर्स, वो एवेन्यू नहीं है जिसपे वो आकर ये बता सकें कि वो इसको पसंद कर रही हैं या नहीं पसंद कर रही हैं। बट अगेन द काउंटर टू दैट इज जब आप यूट्यूब पे जाके व्यूज देखते हैं किसी चीज के, तो उससे भी आपको पता लगता है कि कितने लोग वो कंटेंट सीक आउट कर रहे हैं, कितने लोगों ने वो एपिसोड देखी है, which again then tells you that yes, there is a segment of your society that is seeking out that content, that is enjoying that content. आप नीचे के कमेंट्स पढ़ें, जिस तरह से लोग ड्रामे के कैरेक्टर्स के साथ रिलेट करते हैं, जैसे बात करते हैं तंजूसी कि हाँ ये तो आए थे, इन्होंने तो देखा भी था। और एक चीज मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगी कि बहुत सी रियलिटीज होती हैं जिनका शायद राइटर्स ने चूंकि खुद एक्सपीरियंस नहीं की होती तो उनको शायद ना पता हो कि उसकी इंटेंसिटी क्या है। शादी तो मेरे ख्याल में बहुत सारे राइटर्स ने एक्सपीरियंस की होगी, तो शादी को कैसे मसलों का सॉल्यूशन समझ लेते हैं जब शादी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स वन कैन एवर हैव। सो बिगुल ये भी थोड़ा सा बताएं कि राइटर को क्या कहा जाता है कि अपने एक्सपीरियंस से भी भूल जाओ कि शादी के अंदर इंसान के साथ क्या कुछ होता है, सिर्फ ब्रॉड स्ट्रोक्स में वो पेंट करो जो हम दिखाना चाहते हैं। औरत को जी मेरी ना बिल्कुल ठीक आपने बात कही कि खुदा पे छोड़ दो कन्वीनियंटली, ये बात बिल्कुल, और ये बिल्कुल गलत है कि मर्द की भी फिर सारी चीजों को खुदा पे छोड़ देते हैं। लेकिन मेरा कहने का सिर्फ मकसद ये था, मैं थोड़ा सा सिर्फ ये क्लैरिफाई करी हूँ कि रेजोल्यूशन का मतलब ही मेरा ये था कि खुदा से पहले मर्द पे छोड़ दो, वो ही तुम्हारा सब करता धरता है, वही तुम्हें संभालेगा। और जो वो कह रहा है, जो बात अभी सारा ने भी कही और शायद किसी और ने भी पॉइंट आउट की थी कि देखिए राइटर है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, ऑफ कोर्स मैं सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी राइटर को देती हूँ कि उसकी फाउंडेशन के ऊपर काम हो रहा होता है। व्हाट अबाउट द एक्टर्स? लुक एट द स्टार एक्टर्स। आई मीन व्हाट, अगर हम सफर में माहिरा इतनी फॉरगिविंग हो जाती है टुवर्ड्स द एंड कि वो हर चीज माफ करने को तैयार है, थप्पड़ खाकर उठ के और अपनी पूरी जिंदगी खार करके फिर खड़ी होने को तैयार है। या अभी हाल ही में उनका एक और प्ले स्टार्ट हुआ है, मैंने उसके सिर्फ रशेस देखे, क्वाइट प्रॉब्लमैटिक, अगेन टू सिस्टर्स फॉलोइंग फॉर द सेम कजन। एक तो मैं कजन स्टोरी से बहुत परेशान हूँ। तो वो अगर माहिरा को थप्पड़ लग जाता है ना, तो आपकी 90% औरत के उसको बड़ी तस्कीन पहुंचती है जो इस डोमेस्टिक अब्यूज का शिकार है, कि माहिरा भी तो थप्पड़ खा रही है, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। दे लुक अप टू देम। जो विजुअल नजर आ रहा है वो तो माहिरा का या सनम का या जितनी हमारी एक्ट्रेसेस हैं, महविश है, सभा है, जो भी हैं, उनका नजर आ रहा है ना। जो उनको राइटर की शक्ल नजर नहीं आ रही, उनको तो ये नजर आ रहा है कि ये इतनी अच्छी लड़की, इतनी साबिर लड़की है, ये इतनी फॉरगिविंग है और इसी की इज्जत है माशरे में, मुझे भी ऐसा ही बनना है। तो वो तो आइडियलाइज करने लग जाती हैं। तो जब तक, और चंद सारी एक्टर्स ऐसा नहीं कर सकते, जैसे सारे राइटर स्टैंड नहीं ले सकते, उसी तरह से चंद हमारे स्टार एक्टर्स ऐसे हैं जो शायद ये अफोर्ड कर सकते हैं कि वो बिठा कर अपने ऊपर एक कहानी ऐसी लिखा सकें जिसमें ऐसे प्रॉब्लम्स ना हो, मगर वो ऐसा करते नहीं है। ये बात सोचना, मैं सिर्फ कहना चाह रही हूँ कि वी नीड टू थिंक अबाउट दैट। व्हाई सोशल मीडिया पे या कहीं पे हमें वो आकर बड़ी एम्पावर्ड औरतें नजर आती हैं और हैं
इसमें कोई शक नहीं है, वो बड़ी सक्सेसफुल हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो ऐसे प्लेस में जब एक्ट करती हैं, ऐसे कैरेक्टर्स को एक्सेप्ट कर लेती हैं, तो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स हैं कि आई रिफ्यूज टू राइट सर्टन कैरेक्टर्स और सर्टन स्टोरी लाइन्स, राइट, कि ठीक है नहीं लिखते, क्या करेंगे, आप कट कर देंगे, बहुत अरसा किया उन्होंने मेरे साथ, कितना कर लेंगे, नीश एक थी वो ग्रो करती जा रही है, आपकी स्पेस तो बनती है, लेकिन कितने लोग मेरे साथ खड़े हो सकते हैं? रातों रात ये लोग अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहते हैं, इतना पैसा है, इतना ल्यूक्रेटिव है ये इंडस्ट्री। एक राइटर जो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से स्टार्ट करता है, उसको 2-3 इस तरह के सीरियल्स आप जो कमर्शियली हिट हो जाते हैं, उसके बाद फिर आप उसका लाइफस्टाइल ओवरनाइट चेंज होता है, तो ये भी एक बहुत मसला है, इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, उनको बचाइए। बिल्कुल, मैं पिछली वाली बात पे आपके आने चाह रही थी कि ये खवातीन जब सुपरस्टार खवातीन को थप्पड़ खाते हुए देखती हैं तो वो बहुत खुश होती हैं। उसका एक और पहलू भी है कि वो मर्द भी बहुत खुश होते हैं जब वो फवाद हुसैन जैसे आदमी को या XYZ जो भी हमारे सुपर एक्टर्स हैं उनको थप्पड़ मारते हुए दिखाया जाता है। वो कहते हैं देखो ये मार रहा है अपनी बीवी को, तो मुझे तो हक पहुंचता ही है, ये इतना बड़ा स्टार है, ये इस औरत को थप्पड़ मार रहा है जो खुद इतनी बड़ी स्टार है, उनके लिए ये कहानी नहीं है, ये एक हकीकत चल रही है। तो कहते हैं जब उसको थप्पड़ मार तो वो मर्द भी इसको इन्फोर्स कर रहे हैं। बिल्कुल आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं, और जो सारा बात कह रही है उसको भी नहीं इग्नोर करना चाहिए। ये बात सच है कि इसको मेजॉरिटी सिर्फ देख नहीं रही, अप्रिशिएट कर रही है, और वो आपने जैसे जी, और वो मिडिल क्लास भी है, इट्स नॉट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सी क्लास एट ऑल, सी क्लास की औरत तो हमारे एम्पावर्ड है बहुत। बिल्कुल। दूसरी चीज ये जो सारा ने कही कि हमारे पास चॉइस होनी चाहिए कि अगर ठीक है हमें ये नहीं पसंद हम और देख लें, मगर 15, 16, 17 जितने भी चैनल्स हैं हमारे, सब पे इसी लहज के ड्रामे चल रहे हैं, तो हम जाएं तो जाए कहाँ? मतलब मैंने बहुत अरसा ये सोचा कि मैं ड्रामे ना देखूं, तो मैं कहा नहीं, फिर मैं मॉनिटर कैसे करूंगी, फिर मैं बात कैसे करूंगी? तो एक्चुअली वर्टिगो हो जाता है आपको ड्रामे देख के, एक्चुअली मुझे सर्क खानी पड़ती है क्योंकि बिल्कुल आ जाता है, और उन्होंने आपका माइंडसेट बदला है ना, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर हुक हो गई है आपके मिडिल क्लास और अग्री करने लग गई है इन सारे नैरेटिव्स के साथ। माई मदर, इंक्लूडिंग माई मदर, राइट, वो ये सब ड्रामे बड़े शौक से देखती हैं, और मैं कभी उनसे बैठकर इसके ऊपर बात करना चाहूँ तो वो मुझे ये कहती हैं हाँ ये होना नहीं चाहिए था, ये बहुत गलत हुआ है, and I just keep on asking why are you watching it? She said I don't have anything else to do, I'm a retired woman, I want to have some entertainment in my life, तो मुझे टीवी भी नहीं देखने देती, तो ये होता ही यही है, बहुत मैं सिर्फ इसलिए देखती हूँ कि मुझे पता चले कि कितना गलत दिखाया जा रहा है। ये सब उनके एक्सक्यूजेस हैं। She is addicted to it. She likes that narrative, right? वो इनकी एक एडिक्शन है, और वो और उनकी हाउस हेल्पर सब मिलके देखते हैं, और वो कंडेम करना चाहती हैं इस चीज को, कर नहीं पाती हैं, कहीं पे वो कन्विंस्ड नहीं है उसको कंडेम करने के लिए, तो धीरे धीरे डेंट तो किया है और कर दिया है, एडिक्टेड हैं हमारे यहाँ मिडिल क्लास औरतें। एक सवाल तो खैर नहीं, इट वाज जस्ट अ कमेंट, और मुझे लगा कि हम इसको डंक कहें, DUNK, या DUNG डंग कहें, काउ डंक, बिकॉज मतलब एक्चुअली वो उस दूसरी कैटेगरी में ज्यादा आता है, लेकिन डंक भी सही है। अभी आप डंक के नाम से एक और प्ले देख लेंगे, अभी देख लेंगे आप कुछ ही दिन। सब डसे गए हैं, देखें डंक भी बड़ा सही नाम है, सबको बहुत जहर लगा है, सबको बहुत जहरीला लगा है, इसीलिए आप सब यहाँ पे बैठ के इस बारे में बात कर रहे हैं। तो बात तो हमने सिला पे भी की और हमने सब पे की बात, बिकॉज बात करना ही हमारा काम है एक तरह से, बट आई वाज रियली वंडरिंग कि इतना रिग्रेसिव, इतना ज्यादा मिसोजिनिस्ट, इतना सेक्सिस्ट प्ले, it should have been called dung, DUNG. You're right, you can call it whatever, तस्नीम, लेकिन ये अभी रेप्लिकेट होगा। देखिए हर चीज के लिए मुझे सिला के लिए मुझे फिर हर जगह से फोन आने शुरू हो कि एक ऐसा प्ले और लिखते हैं, तो मैंने कहा मेरी डबल रोटी की फैक्ट्री है, आप क्या बात कर रहे हैं? It was a very sensitive topic. I mean, it exhausted me emotionally.
आप मजाक तो नहीं ना कर रही थी, लेकिन वो बड़े आराम से कहते हैं कि आप फटाफट ऐसा और लिखते हैं। एक बात मैं और आपको कहना चाहूंगी कि आप कुछ भी कर लीजिए, आपकी हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव चेयर से जब हमें एज राइटर्स ये बात कही जाती है कि आप अर्तगरुल देखिए और ऐसे ड्रामे बनाएं, आप अपने ड्रामों में तलाक मत दिखाइए, इससे बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है, आप हमारी इस्लामिक वैल्यूज और ईस्टर्न वैल्यूज के ऊपर सारे प्लेस बनाइए और हमारे यंगस्टर्स को बताइए कि ये हैं हमारी ईस्टर्न वैल्यूज। तो जब मैं उनसे ये कहती हूँ कि आपका यूथ तो आपका ड्रामा नहीं देखता भाई, उनका एक्सेस देखिए कहाँ है, उसको तो आप अब कंट्रोल नहीं कर सकते, वो क्यों देखेगा? एंड व्हेन विल वी स्टॉप इवन दिस रिलीजियस ग्लोरिफिकेशन? हम आम इंसान की बात क्यों नहीं कर सकते? और इतना टैबू है ऑलरेडी आपके तलाक का इस माशरे में, वो औरत बेचारी ना घर में एक्सेप्ट होती है ना उसकी एक्सेप्टेबिलिटी सोसाइटी में है, तो हम उसे क्यों नहीं कह सकते कि ये चीज जो है इसका राइट है उसको, रिलीजियसली भी है। सॉरी, ज्यादातर बात वो मर्द करते हैं जो ऑलरेडी 2-3 तलाकें खुद ले चुके होते हैं, दे चुके होते हैं। जी, तो इसलिए वो उन्होंने कहा कि बच्चों पे बुरा असर पड़ता है। और अभी किसी ने कहा, सारा ने शायद मुझे कहा था कि जो शादियां हैं उसको भी बड़ा ग्लोरीफाई किया जाता है, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को भी बड़ा ग्लोरीफाई किया जाता है। वो भी इसलिए कि खाबर ने बात की थी, मैं बार बार उनकी बात को अग्री इसलिए कर रही हूँ कि ये रियलिज्म है। शादियों के मैरिज के इंस्टीट्यूशन के अंदर जो लूप होल्स हैं या जो मसाइल हैं उनको भी तो एड्रेस करना पड़ेगा ना हमें। तो जब हम करने लगते हैं तो मुझे तो कहा जाता है कि आप तो पता नहीं लादीनी हैं और आप तो पता नहीं कौन सा एजेंडा, वेस्टर्न एजेंडा लेकर आ गई हैं, और आप तो मतलब मेरे कुछ आई वाज रियली अम्यूज्ड कि मेरे उन चीज़ों के नीचे कैप्शन लगाए जाते हैं कि पाकिस्तान की औरतों को खराब करने में बीगल का बहुत बड़ा हाथ है। And I proudly take all that as a compliment कि हाँ जरूर हुआ होगा। लेकिन तो हम क्यों नहीं बात करेंगे? हम तो करेंगे ना कि शादी में बड़े मसाइल हैं, आप इंस्टीट्यूशन के ऊपर काम कीजिए, इसकी जरूरत है काम करने की। नहीं, लेकिन फिर वही बात है, मेजॉरिटी देख रही है आप। महरीन का मुझे वो पॉइंट बहुत पसंद भी आया कि why did Manal have to marry Heather? Why couldn't they just be friends? I mean, I still have friends from my university जो 40 साल पुराने हैं, 40 साल से हमारी दोस्तियां हैं। So friendships बिल्कुल सही, friendships are very strong. You are between the two genders, जी। So you don't really, I mean, why do you have to justify being supportive through marriage? जी, इसलिए कि कोई और जगह नहीं है तस्वीर। एक्चुअली उसका ये था, उसमें ये प्रॉब्लम था कि वो दिखाना चाह रही थी एक्चुअली कि इनका चक्कर चल रहा था, इसलिए उसने मुझे रिजेक्ट किया। मैं एग्री करती हूँ शाजिया जी इस बात से, और मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी कि प्रॉब्लम ये है इसमें कि बहुत सारे ड्रामों में ये भी दिखाया जाता है कि मर्द और औरत के दरमियान दोस्ती का रिश्ता नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। बिल्कुल। और मैंने ये नोट किया अपनी जिंदगी में, और अदरवाइज भी हमारे आईडी कार्ड पे भी हमारा नाम, मतलब औरत का नाम, मर्द का नाम भी बाप के साथ या शौहर के साथ एसोसिएटेड होता है। औरत के लिए जो रिलेशनशिप है वो किसी मर्द के साथ कनेक्टेड होकर डिफाइन होती है, वो इंडिपेंडेंटली डिफाइन नहीं हो सकती है। औरत इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकती, औरत एग्जिस्ट करती है किसी के साथ कनेक्ट होके, या तो वो बाप के साथ कनेक्ट होगी, या भाई के साथ होगी, शौहर के साथ होगी, और फिर बेटे के साथ होगी। वो इंडिपेंडेंटली नहीं एग्जिस्ट करती है। और बीगुल बेहतरीन इस पर बता सकती हैं कि ये कैरेक्टर्स डेवलप ही ऐसे किए जाते हैं कि आपको बताया जाए कि औरत हैज टू रिलाई ऑन a male character in her life or a male supporter in her life. और शाजिया का पॉइंट बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल इवेंचुअली उसने यूज किया। You're right। देखिए ये बात कही जाती है, ये बात भी बहुत इसके ऊपर। जी बोलिए। सॉरी आप कुछ कह रहे हो? जिस और इस प्ले में इशू था कि सारे, नहीं मैं कह रही थी इस प्ले में एक और ये इशू था कि सारे के सारे प्रोफेसर भी लेके और अव्वल के अब्बा भी लेके सब खुद ही कर लेते हैं। मतलब क्या आदमियों के ऊपर कुछ अगर मुश्किल आती है तो वो जो है वो बस वो डिसाइड कि जस्ट वी शुड थ्रो इन द टॉवल एंड शुड किल आवरसेल्व्स। तो इसमें ये भी इशू था कि दो जो है इसके अंदर खुदकुशी हुई है, दिखाई है इस प्ले में, which is I don't know, उसमें सुसाइड तो इस तरह से प्ले में इतने मजे से दिखा रहे हैं कि बस
वो अच्छा, और वो जो फादर ने जो अपने आप को किल किया उसका कोई इतना असर भी नहीं हुआ किसी को नहीं हुआ। देखिए जी, जनरली देखा जाए तो हमारे यहाँ जो एक पॉपुलर मी टू या हरासमेंट का जो केस था एट वर्क प्लेस, जिसका हशर हमने होते देखा है, ठीक है, फिर आप प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दे देते हैं, आप वहां भी तो कंफ्यूजन देखिए ना। मैं वही बार बार ये बात कहना चाह रही हूँ कि बहरहाल ये प्रोजेक्शन है सोसाइटी की कि आपके यहाँ एक हाई प्रोफाइल मी टू मूवमेंट केस था जिसका तमाशा बन के रह गया। वो लोग जो उसमें इन्वॉल्व हुई, वो खवातीन जो उसमें एज विटनेसेस भी इन्वॉल्व हुई, उन सब की हरासमेंट अभी तक जारी है। ये मैं जाती तौर पे ये बात जानती हूँ। तो आप वहाँ कहाँ जाइए? अब आप मुझे बताइए कि वही चीज, वही नैरेटिव एक्चुअली इंडोर्स किया जा रहा है। और ये बात भी मेरीन ने सही की कि या ज़ौजियत या वल्दियत के साथ आपकी आइडेंटिटी है। आप औरत, जो आपने कहा तस्नीम, औरत और मर्द दोस्त नहीं हो सकते, ये डायलॉग्स हैं, ये बार बार आपके कान सुनेंगे। सिला में मैंने डिलिबरेटली ये बात डेवलप की और ये जुमला कहलवाया कि औरत और मर्द दोस्त हो सकते हैं, इट इज ऑल राइट। लेकिन अदर देन दैट, यू नो, कोई जरूरी नहीं कि रोमांस हो, और कजन्स के बीच में भी एक रोमांस ही जरूरी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन ये बात है, एक चीज में प्ले के बारे में मुझे एक और प्रॉब्लम, सॉरी, प्ले के रेफरेंस से मुझे एक और इशू ये था, शुरू में इन्होंने बहुत हल्का सा इस बात को की तरफ हिंट किया कि हैदर ने कुछ मैसेजेस, कुछ इनअप्रोप्रिएट मैसेजेस, उसका कंटेंट हमें बताया नहीं गया, बट हमें ये बताया गया कि हैदर ने कुछ इनअप्रोप्रिएट मैसेजेस गलती से, जो कि दिस वाज वेयर एवरीथिंग स्टार्टेड, कि उसने वो गलती से मैसेजेस अपने उस प्रोफेसर को भेजे, जी, जिनका नाम एक था, फ्रेंड के साथ नाम मिलता था। तो उस प्रॉब्लम को तो किसी ने एड्रेस ही नहीं किया, उस चीज को किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया। वो जो प्रोफेसर थी, जो कि एक एमेंसिपेटेड औरत दिखाई हुई थी, उन्होंने भी ये बात नहीं की कि ये गलत कह रही है, ये डेफिनेटली झूठ बोल रही है क्योंकि ये इसको बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये चीजें, किसी ने इस चीज पे, मतलब मुझे कोई कैरेक्टर उस प्ले में लॉजिकल नहीं लगा। मुझे लगा कि जैसे किसी कैरेक्टर को एनालाइज नहीं करना आ रहा सिचुएशन को, किसी सिचुएशन को ब्रेक डाउन नहीं करना आ रहा, कैरेक्टर्स पे काम नहीं हुआ। और राइटर्स जो हैं, अब अगर आप राइटर हैं किसी प्ले के, या अगर आप कोई नॉवेल लिखते हैं, तो आपको खुद भी बहुत किताबें पढ़नी चाहिए। मुझे नहीं लगता हमारे जो प्ले राइटर्स हैं वो कुछ भी पढ़ते हैं। वो जो आप लोगों ने ही कहा कि ड्रामे देख के उसी की कॉपी एक और बना देते हैं, तो वो यही चल रहा है। नहीं, इसमें आई थिंक मुझे अगर अब ये लव्स भी तो थोड़ा सा रोबोट जो है वो इन इटसेल्फ हैज बिकम लाइक अ प्रॉब्लमेटिक वर्ड आफ्टर स्टेटमेंट, बट मुझे पूरे जो हर सीरीज, उसमें मुझे लगा लोग कुछ रोबोट्स की तरह चल रहे। सफीर looked like a robot. I mean, उसका एक्शन is somewhere in the air, वो जमीन पे है ही नहीं। हैदर के कुछ एक्सप्रेशंस थे डेफिनेटली, मनाल के थे, बट जो हैदर की वालदा थी, उनका एक्सप्रेशन थ्रू आउट एक जैसे ही रहा। एंड like I said, you know, are women cats? Because cats don't smile. I didn't see anybody smile in this play. I mean, it was like, what's wrong? कहीं तो आप मुस्कुराते हो, कोई जिंदगी में कोई चीज तो आपकी अच्छी हो रही होती है। So Dunk actually had a lot of problems जो शायद सरसरी नजर से अगर आप देखें तो आपको नजर उस तरह से ना आए, but if you start to look at it with the gender lens, with human lens, with maybe 3D lens, तो आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी जो एक्चुअल जिंदगी में नहीं हो पाती। आपकी जिंदगी में ऐसे कैरेक्टर्स नहीं होते जो फॉर एवर डिजाइनर घड़ियां और डिजाइनर जैकेट्स और डिजाइनर शलवार कमीज पहन के सिर्फ एक कमरे से निकल के दूसरे कमरे में जाते हैं। आई नेवर सॉ सफीर गो टू द ऑफिस एक्चुअली। मेरे लिए वर्किंग मेन एंड विमेन बहुत जरूरी है फॉर अ सोसाइटी। आई डिड नॉट सी दैट हैपन इन दिस प्ले। इवन जिस घर में हैदर रह रहा है, इट्स अ ब्यूटिफुल हाउस, इट्स अ फ्रेंड्स हाउस, द फ्रेंड इज नॉट वर्किंग, where is the money coming from to be able to live a life like that?
सो ये सारे वो इश्यूज हैं जो मैं चाह रही थी कि मोहसिन अगर होते तो हम उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते कि भाई आपने किस बिना पे इस तरह के कैरेक्टर्स तख्लीक किए, कुछ हमें भी बता दें ताकि हम थोड़ा सा हमारी नॉलेज में इजाफा था, बट वो नहीं हो पाया। ये प्रॉब्लम I- मुझे फीमेल राइटर्स में तो मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ ये प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने ये सुना है, मैं वेरीफाई नहीं कर सकती बट मैंने ये सुना है, शायद बीगुल वेरीफाई कर सकें, कि बहुत सारी डाइजेस्ट राइटर्स को प्रमोट किया गया बिल्कुल सही है, कम। वो बिल्कुल सही है, जी, वो बिल्कुल सही है। तो मुझे ये लगता है जैसे अगर वो खुद कभी किसी ऑफिस में गई नहीं, जैसे सारा ने बात की कि अगर उनकी रियलिटी यही है जो घर में बेस्ड है, तो वो ऑफिस के नैरेटिव को एड्रेस नहीं कर सकती। लेकिन मेल राइटर्स से मैं ये थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन रखती हूँ कि वो, उनका एक्सपोजर ज्यादा है, हमारी सोसाइटी जैसे डिजाइंड है कि मर्द जाते हैं ऑफिस, मर्दों के रोल्स ऐसे होते हैं, तो वो क्यों नहीं प्रेजेंट कर सकते इस तरह के प्लेस जो मर्दों को या औरतों को दिखाएं कि वो साथ काम कर रही हैं और क्या काम कर रहे हैं। आप सबसे ज्यादा जो आप किसी भी ऑफिस एनवायरनमेंट के बारे में सुनेंगे वो ये है कि प्रेजेंटेशन तैयार कर दी, बहुत जरूरी मीटिंग है, जाना है। सिर्फ ये नहीं होता ऑफिस में, और बहुत कुछ होता है बहुत कुछ बट होता है। उनके बारे में बात नहीं की जाती, इसलिए कि मुझे लगता है जैसे किसी को पता ही नहीं है, और या वो बताना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो बीगुल की तरह के एजेंडा ये है कि आप लिमिट कर दें इस स्कोप में, और बस उधर ही आप ब्लाइंडर्स लगा दिए और बस उधर ही देखते रहे, आप इधर उधर ना देखें। मगर मेहरीन, ब्लाइंडर तो आप खवातीन पे डाल रहे हैं, तो आप मर्दों को भी काम करते हुए दिखा रहे हैं। मेरा प्रॉब्लम डंक में ये था कि किसी मर्द को किसी ऑफिस के अंदर काम करते हुए नहीं दिखाया गया, although they lived a life of like अरबपति खरबपति जो भी जैसे भी लोग होते होंगे, बट मुझे नजर, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा एक मसला था कि आप हर वक्त इतने तैयार होके घर के अंदर, काश के मैं अपने घर के लोगों को भी ऐसे ही देखूं जो दिन रात नाइट सूट में या पजामाज में उसमें घूम रहे होते हैं जब कुछ काम ना हो, या संडे हो या ऑफिस के कपड़ों में होते हैं, विच इज वेरी सिंपल। बट द थिंग इज कि it was so unreal, everything was unreal, everything started with a lie and became too melodramatic, and as I said, it should have been DUNG, not DUNK. I'm stuck with that actually, कि ये बर्दाश्त करना जो है बहुत मुश्किल काम था, and I hope कि इसका कोई सीक्वल अब ना बन रहा हो, मुझे क्योंकि सिर्फ एक बात कहनी है कैरेक्टर्स के लिहाज से, मुझे लगता है फ्लैट बहुत है, वो सब कह चुके हैं ये बात। जैसे वो जो उनका जो ड्रामा था जिसमें एक उनका डायलॉग ही सबसे ज्यादा मशहूर हुआ था, लेकिन कोई कैरेक्टर ऐसा स्टैंड नहीं किया था कि जो अगर हम देखें तो आज तक हमें याद है कबाचा था और सानिया थी, और हमें नाम याद है, वो कैरेक्टर से हम रिलेट करते थे क्योंकि बहुत ह्यूमन एलिमेंट्स डाले जाते थे। अब वही बात जो सब कह चुके हैं कि बहुत फ्लैट हैं, या वो खवातीन जो फुल मेकअप में सो के उठती हैं, मैं तो उनको देख के बहुत मरूब होती हूँ, जो सोते हुए वो पूरा मेकअप करके फिर वो कहती है हमें फ्रेश होना है। तो ये बहुत ही अनरियलिस्टिक चीजें जो शायद हमने जी टीवी वगैरह से मरूब होके दिया है कि हमारा जो उस वक्त ऑडियंस था वो उधर चला गया है, लेकिन हमारे चैनल्स को समझना चाहिए कि वो वक्त अब गुजर चुका है। वो लेट 80s शायद 90s का जमाना था जब द पाकिस्तानी ऑडियंस वाज बोर्ड from the what we were being shown, तो वो इसलिए वहां पर चले गए थे, मेरे ख्याल में कंटेंट की वजह से नहीं गए थे। और हमारे चैनल्स खासतौर पर हमारे राइटर्स को ये जोर देना चाहिए कि, और एक्टर्स तो खैर मुझे नहीं लगता कि बोलेंगे, ज़ाहिर है उनका रोजी रोटी उस तरह से है, लेकिन ये राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, दे नीड टू टेक अ स्टैंड और अपने डेवलप करें इस तरह कैरेक्टर्स के। हमें सिर्फ जुमला इसलिए याद रह गया उस ड्रामे का क्योंकि वो बहुत ही बुरा था, लेकिन उसके साथ जो कैरेक्टर्स थे वो मुझे से आदमी को नहीं याद, क्योंकि मैं ज्यादा ड्रामे नहीं देखती। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं कि 3 डायमेंशनल हमारे कैरेक्टर्स हों जो कि आपके दिमाग में रहें। मेरे ख्याल में बहुत कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो दिमाग में रहते हैं ड्रामे में। यू आर वेरी राइट लुबना। मुझे याद है कि हमने एक डिजिटल स्टोरी की थी और स्पेशली इसी पे की थी, प्लेस के ऊपर, और जब उस राउंड टेबल में बीगुल वाज देयर, सैफ was there, Ehteshamuddin was there, a lot of people were there, Saji Ali was there, Saji Gul. So उस डिजिटल स्टोरी को जो जिस तरह से लिखा गया था, उसका एक जुमला जो था वो ये था कि 70 की
और 80 की दिहाई में जो हमारे ड्रामे होते थे तो उनकी वजह से ट्रैफिक रुक जाती थी, और आज के ड्रामे ऐसे हैं कि हमारा जहन रुक गया है. सो आई एक्चुअली बिलीव कि यही कुछ, और ये बीगुल एंड एवरीबॉडी सेड इट्स एन एजेंडा कि आपके जहन को रोक दिया जाए. ट्रैफिक आपकी रवा दवा है, आपकी किसी प्ले के लिए आपकी ट्रैफिक नहीं रुकती, इसलिए इसको पता है कि हम यूट्यूब पे जाके देख लेंगे. बट जहन को रोकना उनका कामयाब हो रहा है. एंड आई थिंक कि हम एक कोशिश फिर करेंगे, अक्स इज नॉट द वन टू गिव अप, कि हम इन राइटर्स को, डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को बुलाएं और एक्टर्स को, और पूछें कि आप एक्चुअली माशरे में करना क्या चाह रहे हैं. आप वो ख़वातीन लेके आना चाह रहे हैं जो नहीं होनी चाहिए, कि वो जिसको हम एक ज़माने में अल्लाह मियाँ की गाय कहा करते थे. अब हमें थिंकिंग विमेन चाहिए, और वो हैं. द होल डिबेट अराउंड नूर मुकद्दम, और अब जिस तरफ वो जा रही है आफ्टर द लेटेस्ट फॉरेंसिक रिपोर्ट कि जी शी हैड बीन रेप्ड बिफोर शी वाज मर्डर्ड. सो अब आई डोंट नो उसमें और कितना मच स्लिंगिंग होगी और विक्टिम शेमिंग होगी. शी इज़ नॉट देयर. और मैंने ये बताया था पहले भी कि ये नई चीज़ नहीं है. 1998 में भी यही इस तरह का वाक़या हुआ था, और नीना अजीज़ जिसका मैंने केस बताया था, she was murdered. Her headless body was found from the basement of her house where she lived independently. Her head was found later on, and the kind of reporting that was there in the English and Urdu newspaper, and we have the whole folder of it, was something that I think a lot of people who do media stuff should read. वही चीज़ हम अब देख रहे हैं कि ख़वातीन पे लाके आप छोड़ दें और मर्दों को टोटली एग्जोनरेट कर दें आप, कि हम I don't know what that guy's name is, that जाफर गाय, हम उसके कैरेक्टर पे कोई बात नहीं सुन रहे. आई डोंट थिंक कि ट्विटर पे 1-2 प्रोग्राम्स के अलावा या 1-2 कमेंट्स के अलावा उस पे कोई बात हुई है. सो डंक एक्चुअली मेरे लिए प्रॉब्लम इसलिए था कि इसमें बहुत सारी वो चीज़ें थी जो हमारे यहाँ यंग बच्चे जो ट्विटर या इस पे हैं वो भी उठा लेते हैं, बिकॉज ये चीज़ें यूट्यूब पे आएंगी, उस पे कमेंट्स आएंगे, बच्चे मतलब यंगस्टर्स भी देखेंगे, एंड दे से ओके यू नो सो women do this, so every woman is amal. मेरे लिए ये बहुत बड़ा मसला है, and I would like to keep on addressing it. आज डंक है, कल कोई और प्ले होगा, and I'll like to invite everybody who's been here today अपने इतना कीमती वक्त निकाल के just to be a support to what Aks does. And I would like to invite everybody कि अगर कोई comment आप लोग देना चाहें. It's been already been like almost like 2 hours now. तो कोई final कोई comment देना चाहे तो ज़रूर, and then we'll say goodbye. मैं तो क्विकली ये कहना चाहूंगी जी कि डरिए उस वक्त से कि जिस दिन ये नूर के ऊपर एक ड्रामा बनाने वाले, और ये अभी बना देंगे आपके देखते देखते इसी साल के अंदर, और वो बहुत प्रॉब्लमैटिक होगा, और उसके अंदर अगेन बहुत सारे क्वेश्चंस जो किए जाएंगे, और फिर वो उसका नैरेटिव बदलने की कोशिश भी करेंगे. वो दिखाना चाहेंगे कि हम विक्टिम के साथ हैं, उस विक्टिम के साथ दिखाने में वो इतनी विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं, और उस विक्टिम को बहरहाल इतना जिम्मेदार ठहरा देंगे कि आपका जो उसका एक एंड में एक वो जो एक मॉरल पुलिसिंग तो शुरू होगी, आपका जो एक नतीजा निकलेगा हाथ में वो आएगा कि आप घर में बैठिए और आप अपनी हिफाजत कीजिए और आप इन मर्दों से दूर रहिए. इसके अलावा और उसका कुछ रास्ता नहीं निकलेगा, और मैं डर के बैठी हूँ उस वक्त से कि हम करीब वो देखेंगे स्क्रीन. That's a very bleak thought. If we are going to end on that, people बहुत खौफनाक. We've seen a lot of incidents like ये. तस्लीमा आपको पता ही है कि डंक का बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से ये चीज उठाई गई है.
नहीं डेफिनेटली बहुत है, मगर सच्चाई है इसमें बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में। यही होगा क्योंकि हमने खतीजा का भी देखा था, ये एक ड्रामा आया था, इसके बावजूद उस आदमी को छोड़ दिया गया, जो कि 5 साल की सजा तो कुछ भी नहीं थी। फोकस इस पे होना चाहिए था कि उसने अटेम्प्ट टू मर्डर ही किया, तो उसकी किस्मत अच्छी थी लड़की की, वो बच गई। तो कानून पे हमें बात करनी चाहिए थी कि ये एक 23 दफा कोई किसी को मारे ओवर के लिए, वो तो उसकी किस्मत लड़की की बच गई, वरना वो तो मर गई थी। और उस पे आप 5 साल की सजा देके 3.5 साल में उसको निकाल दे, तो इस पे ड्रामा बनने के बजाय वाकई बिल्कुल सही कह रही हैं कि वो नूर पे अगर बनेगा तो वो अभी भी, अभी मैं देख रही थी ट्विटर पे वही गुफ्तगू चल रही है जो कि ये कह रही है जो ड्रामे में आएगा, सब वही कह रहे हैं। वो उन साहब को सपोर्ट कर रहे हैं जो एंकर हैं कि वो बिल्कुल सही बातें करते हैं और खौफ आ रहा है उससे। सही। एक चीज तस्नीम, मैं सॉरी क्योंकि मैं लेट थोड़ी आई थी आज, सॉरी 13 अगस्त है तो इतनी ट्रैफिक है कि मैं पहुंचते घर बहुत देर हो गई। हाँ जी, नहीं वो बस मैं 6 बजे से निकली हुई थी और मैं 8 बजे घर पहुंची हूँ, तो मैं तो ड्राइव करते हुए। तो बेसिकली मैं इसके अंदर ये जो बात बीगुल ने और लुबना और आप लोगों की मैं सारी कन्वर्सेशन भी सुन रही थी, ये बात दुरुस्त है कि इस तरीके से एक इमोशनल चीज बना देते हैं, और किस वजह से हमें मालूम है डंक की टाइमिंग किस तरह से वो शुरू हुआ, किस टाइम पर आया है, क्या चीज वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान जैसे मुआशरे में जहां पर वैसी खवातीन असल जो है सेक्सुअल हरासमेंट या सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस के लिए सामने नहीं आती, बिकॉज एक टैबू भी समझा जाता है, और फिर उसके बाद जो एक कोर्ट और हर चीज का जो इतना प्रोसेस लंबा चौड़ा है कि उसकी वजह से हमें मालूम ही नहीं है कि कितने परसेंट, जो कि आई एम श्योर कि 90% से ऊपर होंगे कि असल केसेस आते ही नहीं है, लोग सामने नहीं लेकर आते, जो बेचारी सामने लेकर आती हैं। अब इस तरह के ड्रामों की वजह से समझा जाएगा कि ये सब झूठी जो जिनका सामने भी आता है। तो ये वाली जो चीज है जिस तरह पेंट किया गया है, और ये आप एक मैसेजिंग कर रहे होते हैं, तो पाकिस्तान जैसे मुआशरे में आपने ये मैसेजिंग की है कि कोई भी औरत जिसके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट या रेप या सेक्सुअल हरासमेंट वो उसकी बात करेगी तो वो झूठी ही होगी। तो ये एक मुआशरा जिसके अंदर इतनी ऑलरेडी वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है, और इसके अंदर भी इन्होंने बड़ा उसको ये दिखाने की कोशिश की कि नहीं हम विक्टिम ब्लेमिंग नहीं कर रहे। अगर वो जो यसरा रिजवी है जिनकी वो स्पीच थी एंड पे, वो ऐसी ही थी कि मैं खुद बड़ी पढ़ी लिखी हूँ और मैं विक्टिम ब्लेमिंग और इस चीज पे ये और बहुत ये होता है, लेकिन पूरा ड्रामा ही आपने वो बना दिया, आपने इतना इमोशनल भी कर दिया। लोग तो उस चीज पे यकीन करेंगे ना जब आपने इमोशंस का इस तरीके का इस्तेमाल किया है। तो मैं तो खैर इस चीज की वजह से मुझे तो ये बहुत डेंजरस ड्रामा लगा था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। इट्स नॉट जस्ट डैमेजिंग, इट्स वेरी डेंजरस हमारे माशरे के लिए। और ये बात दुरुस्त है बीगुल और लुबना की कि खुदा ना ख्वास्ता अल्लाह ना करे, लेकिन ये नूर के केस के ऊपर भी कोई अगर इस तरह की चीज करने की कोशिश की गई तो खैर वो दैट विल बी वेरी डेंजरस फॉर पाकिस्तानी वुमेन हु आर ऑलरेडी लिविंग इन अ लॉट ऑफ फियर। Definitely. Yeah, I mean that's a very serious thought जिस पे हम ये meeting अपनी end करना चाह रहे हैं, but again जी बोले। मैं अपनी जिस लास्ट थॉट में ऐड करना चाह रही थी, बहुत अच्छी डिस्कशन रही, सब हम ख्याल लोग हैं जिनके साथ बैठ के अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ये नहीं लगता फिर कि सिर्फ मैं ही सोच रही हूँ कि ये गलत है। मुझे पता चलता है कि और भी लोग हैं जो कि इस बारे में सोच रहे हैं कि ये गलत है। और बीगुल की बात से मुझे बहुत हंसी भी आई कि मेरी भी वालदा बैठ के ये ड्रामे देखती हैं, और आई एम श्योर कि हमारे घरों में जो काम करने वाली खवातीन आती हैं वो भी ये ड्रामे देखती होंगी। मेरा ख्याल है कि अगर हम ये ड्रामे, जो सारा ने भी बात की थी कि अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना देखें, लेकिन अगर हम नहीं देखेंगे, तस्नीम आपने जो बात की, लेकिन अगर हम नहीं देखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस चीज़ को कॉल आउट करें। तो अगर हम कंटिन्यू करें देखना इन ड्रामों को, और जो हमारी जिन पॉपुलेशन को हमें एक्सेस है, अगर हम एटलीस्ट उनमें एजुकेट कर सकें कि ये गलत है, ये सही नहीं है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो शायद थोड़ा थोड़ा कोई असर आना शुरू हो जाए। मैंने बहुत सोचा इस बारे में कि जो बिग बैंग प्रोडक्शंस है उसको क्या मैं उनके तमाम ड्रामे देखना बंद कर दूं, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि अगेन कि मैं नहीं देखूंगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं किस चीज़ को कॉल आउट कर रही हूँ, किस चीज़ के मैंने अगेंस्ट बोलना है, क्या ओपिनियन फॉर्म करना है। सो बट आई थैंक एवरीवन फॉर देयर टाइम, और बहुत मुझे थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके और सबके ख्यालात सुन के। Thank you so much, Mehreen, for like being with us. हम 30 साल से मीडिया मॉनिटर कर रहे हैं, और यकीन माने कि हम
इस किस्म की खबरें मॉनिटर कर, बिकॉज वी मॉनिटर लॉट ऑफ उर्दू वर्नाकुलर मीडिया, न्यूज़पेपर्स स्पेशली, तो जिस किस्म के हेडलाइंस और हम चीज़ें रोज़ ना सिर्फ मॉनिटर कर रहे होते हैं, हम आर्काइव भी कर रहे होते हैं, तो हिम्मत, वाकई में हिम्मत चाहिए होती है आपको कि आप मतलब आप अपनी जहनी तवाज़ुन को बरकरार रखें। और ड्रामा जहाँ मैं स्पेशली मैं जो डंक की बात कर रही हूँ, मुझे लगता है कि मैंने शायद इतनी सर्क की गोलियां पहले नहीं खाई हूँ जितनी मुझे इस वक्त खाने, बिकॉज ऑफ द वर्टिगो, बिकॉज मेरा लिटरली दिमाग चकरा जाता था कि ये दिखाना क्या चाह रहे हैं, एंड देयर वाज नो वे आई कुड रीच आउट to either Fahad Mustafa or the other director or Mohsin Ali or the actors. There wasn't, because मुझे numbers दिए गए, सब कुछ दिया गया, reference दिया गया, but nobody sort of bothered कि हम इस discussion में आए. But thank you everybody. Like minded था, हालांकि मेरी ख्वाहिश होती कि जरा सा dissent हो, थोड़ा सा debate में डिफरेंट ओपिनियन आए, वो लोग अपने आप को डिफेंड करें कि हम क्यों करते हैं या क्यों लिखते हैं इस तरह की चीज़ें, बट सिंस वो नहीं हुआ, बट देन जो लोग थे और जिन्होंने टाइम निकाला, आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम फॉर देयर व्यूज़. आप लोग अपने जो व्यूज़ हैं वो कुछ दिनों में हमारे यूट्यूब चैनल पे देखेंगे. आई होप यू लाइक देम, क्योंकि हम उसको थोड़ा डिफरेंटली प्रेजेंट करना चाहेंगे. And nothing will be taken out of context. I assure you of that. इसलिए मैंने शुरू में ही बता दिया था कि तो ये रिकॉर्ड हो रहा है. दूसरा ये कि हम इसको अपने YouTube चैनल के लिए यूज करेंगे. So thank you so much, and I hope to see you all very soon for some other program or topic or discussion. But yeah, thank you so much. Thank you. Thank you, Ji. Dafes. Thank you, Beagle. Dafes. Dafes. Bye.